वेलकम बैक टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की हमारी खुसूसी बराह रास्त कवरेज ऑन ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें ज्वाइन कीजिए पवेलियन। और ज़बरदस्त दूसरा दिन आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का, दो और बड़े ज़बरदस्त मुकाबले, एक और अपसेट और मैं आपको मज़ीद बताता हूं कि हमारे पास स्टूडियो के अंदर चार लेजेंड्स हैं यहाँ पर दोस्तों। तो इनसे आपको पहले पैनलिस्ट को अंदर लेकर आते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द यंग डायनामिक, द गुड लुकिंग, द डैशिंग Shoaib Malik. Shoaib, welcome back to the studios. Thank you. Then we've got Mr. Dependable himself, the great wall of Pakistani batting during his career and a great captain, Misbah-ul Haq. Misbah, welcome back to the show. Thank you very much. And with that, the toe crushing, golf playing and chappu chalaying Waqar Younis, who's just arrived fresh off the boat this morning. Good to have you back. You look so nice. But tell me something कि ये बाकी तो सारा ठीक है, गुड लुकिंग सिर्फ इसके लिए क्यों है, बाकी की ठीक नहीं? वो दे देने पीछे मेकअप कितना हो रहा है। Carry on. And the king himself, the Sultan of Swing and the president of A Sports and the legend who would destroy battings around the world and hit big sixes everywhere on every ground. It didn't matter how long the boundary was. A really good friend of mine, an outstanding human being, a wonderful personality, great spirit, lovely soul. और कुछ कहना था? कोई चीज़ रह नहीं गई। वसीम अकरम, thank you. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Good evening. So, gentlemen, we've had a great game of cricket. आइए जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं. This was the last match, Zimbabwe versus Ireland, and this is how it went down. Zimbabwe batting first, 174 for 7. और होबार्ट का जो स्टैट हमने देखा था कि यहाँ पर सिर्फ 23% है चेस के ऊपर जीतना, वो स्टैट जो है, वो डेटा जो है आज, it has held itself true because this is what has happened in both the games. But this is how it went down. Raza there with a wonderful Sikandar Raza, 82. He's been doing really well lately. He's really developed into a really good player. And then you've got Little Singh, Little and Singh. Little picking up 3 wickets and two wickets there with Dare and Singh. In response, Ireland, all they could manage was 143. It's a 31-run defeat. Great bowling all round from the Zimbabwe side. They really looked good. They look clinical rather in this entire approach. Let's start off, Misbah. Expert predictions, so alhamdulillah, आप सबकी तकरीबन गलत हुई हैं. Sawai Shoaib got one right today, so well done Shoaib. Good job. Thank you. But Misbah, let's talk about the data, and then we were talking about matchups and everything. मैं एक ही बात करूँगा कि सिकले नहीं जनाब, इतने सारे ने खराब. वो कहानी सब नु धोखा देता है. Yes. Not only us. Yes. दोनों टीमों ने वो जो घास देखी है और उसको देखते हुए दोनों ने बॉलिंग की है. डाटा नहीं देखा उन्होंने, करंट जो मतलब जो भी उनको ऑन द ग्राउंड जो चीज़ नज़र आई उस पे गए. बट आई थिंक डाटा प्रूव. So you think that Ireland made a mistake, won the toss? दोनों ने मेरे ख्याल में वो प्रीवियस जो डाटा था और जो कमेंटेटर्स थे दोनों, इयन बिशप और सैमुअल बद्री, उनकी मेरे ख्याल में पिच असेसमेंट ज़्यादा बेहतर थी. उन्होंने पिच को देखते ही कहा था कि 170 प्लस की पिच है, जबकि मेरे ख्याल में दोनों टीमों ने जिन्होंने टॉस जीता है उन्होंने उसको गलत रीड किया. उन्होंने समझा कि शायद ग्रीन ग्रास है, अर्ली ऑन कुछ हिलेगा, वेदर ऐसा है, बट दैट प्रूव रॉन्ग एंड ऑब्वियसली बिग विन फॉर बोथ टीम्स. Yeah, very big win. Upset again on the West Indies side. We'll talk about that game later, but let's stay with the Zimbabwe and the Ireland match there. Waqar, what do you think? What was Zimbabwe's strategy that has really paid off today? Overall, as a team, they were gelling really good, but everybody was delivering. Yeah, the intent. When we talk, about कि किस तरह T20 cricket खेली जाए, तो Zimbabwean intent जो थी वो that was right there. I mean, हालांकि उनके अर्ली विकेट ज़रूर गिरी, लेकिन जिस तरीके से आके सिकंदर ने बैटिंग की, जिस तरीके से उनके सारे बैट्समैन, अगर स्ट्राइक रेट्स भी आप देखेंगे तो दे आर प्रीटी गुड स्ट्राइक रेट. 170 पे उसने जो 82 किया, 170 के स्ट्राइक रेट से, एंड देयर वर विकेट्स फॉलिंग लेफ्ट राइट सेंटर एट द टाइम. तो वो जो उसकी पॉजिटिवनेस थी, दैट रियली टुक द टीम टू सच टोटल के वेयर थिंग्स वर रियली हार्ड. एंड देन ऑफ कोर्स उनकी जो बॉलिंग है, दे हैव गॉट द बॉलिंग व्हिच कैन डिफेंड दिस सॉर्ट ऑफ टोटल. Let's talk about Sikandar a bit. मैं आपके पास ये आ रहा था वसीम. Sikandar Raza has really developed himself as a very good, very dependable all-rounder. Yeah, there आए दुरुस्त आए. Obviously, he's about touching 40 maybe. But that shows that if you're physically fit, if you're mentally strong, you can play.
इट डजंट, ये नहीं कि 40 के हो गए तो आप रिटायर हो जाओ या ये कर लो। जब ये बैटिंग करने आया है, ये नंबर 5 पे आया, देवर 4 for 79, उनको पकड़ लिया था, मगर उसने अपनी गेम खेली है। वो T20 लंबा नहीं लेके जाता, जो माइंडसेट है कई जनरल टीमों का होता है कि इसको लंबा लेके जाओ। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। यू सी, अब 82 के इसने 82 किया है 48 डिलीवरीज में, स्ट्राइक रेट विकी ने किया 170। और जब आप ऐसी पिच पे किसी भी, आई मीन ऑस्ट्रेलिया में 170 कर लोगे, स्पेशली यू नो डेवलपिंग नेशंस के खिलाफ या एसोसिएट नेशंस के खिलाफ, तो बड़ा मुश्किल होता है इतना लंबा स्कोर करना। और उसके बाद आई सपोज जब ये बैटिंग करने आयरलैंड का जो मेन बैट्समैन था स्टर्लिंग, वो बगैर स्कोर की आउट हो गया। उसके बाद जस्ट इट वाज अ सिंकिंग शिप। जी बिल्कुल। और वसीम, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये ज़रा देखें तो इट्स बीन ऑल अराउंड द विकेट that he went on, he had intent, no question about it. You see, when you see his batting like this, you see कि बल्ला उसने यहाँ रखा हुआ है, and like you were saying शोएब, कि इंटेंट है कि मैंने मारने जाना है, अगर बॉल नहीं है तो मैं स्ट्राइक रोटेट कर लूँगा। अगर आपका इंटेंट ऑपोजिट हो, फॉर इंस्टेंस कि मैं रोकने जाऊँगा, अगर बॉल मिलेगी तो मारूंगा, तो आपको कम शॉटें लगेंगी। Am I right? देखिए सिंपल है, जब आप T20 में बैटिंग करने जा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ लूजिंग विकेट्स, आपने अपना गेम खेलना है। आप जिसकी प्रैक्टिस करते हो या जो आपका नेचुरल गेम है वो आपने खेलना है। क्योंकि सिकंदर ने यही किया, और हमें उसके जो थोड़ा साथ में जिन लोगों ने बैटिंग की, एक ने 22 रन की, एक ने 12 की और एक ने 16 रन की, तो अगर उनको छोटी छोटी पार्टनरशिप्स वो लगी, लेकिन ही वॉज प्लेइंग इज़ नेचुरल गेम, और उसे पता था कि ये 120-30 वाला दौर चला गया हुआ है। अगर मैं भी वही ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलूँगा ओल्ड स्कूल वाली, तो ये हम ऐसे पार टारगेट पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने अपना गेम खेला। देखिए रन्स 1 से 2 बंदे ही करते हैं, और अगर पहले 3 में से करते हैं तो 80-90% आप वो मैच जीतते हैं। लेकिन ये था कि मिडिल ऑर्डर में से एक ने रन्स किए और बाकी ने चिप इन किया और एक अच्छा टारगेट। उसके बावजूद जब 4 विकेटें गिर चुकी थी 79-80 रन्स पे इनकी, उसके बावजूद उसने गेम अपनी खेली। जी वही हम व्यूज़ को बताना चाह रहे हैं कि तेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन तो दुनिया में है कोई नहीं मिडिल ऑर्डर में, एंड सक्सेसफुल। सो यू नो कि इस सिचुएशंस में जब ऐसी 3-4 विकेटें गिर गई, आप बैटिंग करने जा रहे हो, सो यू हैव टू गेट टू अ रिस्पेक्टेबल टोटल। अगर आप वैसे नहीं खेलेंगे वो 120-30 ही होगा। उसमें ये है वसीम भाई, देखिए आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और यू नो द गेम, यू हैव ऑलरेडी असेस्ड द कंडीशंस वंस यूर इन द मिडल, उसके बाद आप अपना गेम खेलें। ये नहीं देखेंगे यार मैं आउट हो गया तो क्या होगा, भाई आउट तो सारे हो जाएंगे, लेकिन आप अपना गेम खेलें। और आप जो है बीइंग अ सीनियर प्लेयर, तो आपको ना वहाँ पे ये करना चाहिए कि यार मुझे मेरा अटैक पता है, मैंने असेस कर ली, कंडीशंस ऐसी हैं, ये मुझे लगता है कि ये पार स्कोर होगा यहाँ पे, यहाँ हम अच्छा फाइट कर सकते हैं। तो उसको आप अचीव करने के लिए जो है ना, क्योंकि यू हैव प्लेड मोर और आपको उस दिन आपका दिन भी है, तो मेक श्योर ये करें कि आप जाएँ, आप अपना गेम खेलें और वहाँ तक टीम को लेके जाएं जहाँ पे एक फाइट हो सके। बिल्कुल। मिसबा, अगर एक सिकंदर रज़ा की हम लोग बात कर लेते हैं। सिकंदर रज़ा का जो है वो ये साल बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तकरीबन 600 रन उन्होंने किए, 598 एंड एट एन एवरेज ऑफ 42। दैट्स अ रियली गुड एवरेज। टीम के इनके आज का स्कोर कार्ड अगर आप देखें गौर से, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि सिकंदर रज़ा की 170 की स्ट्राइक रेट थी, लेकिन जो दूसरे कंट्रीब्यूटर्स हैं वो भी 114, 115, 100 से ऊपर रहे, अदर देन अ कपल ऑफ अदर गाइज। एंड देन द लास्ट मैन इन ल्यूक, ही हैड अ 200% स्ट्राइक रेट। ओवरऑल हाउ इम्पोर्टेंट इज द कलेक्टिव स्ट्राइक रेट ऑफ द टीम आल्सो हैज़ टू बी राइट अप देयर। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक कि वो इतना डोमिनेट कर रहा था सिकंदर उस टाइम पे कि वो मोस्टली फेस भी वही कर रहा था और वो सेट हो गया। उसको एक मोमेंटम मिला, आते ही उसको कुछ बॉलिंग ऐसी हुई कि जो उसकी स्ट्रेंथ थी, और फिर उसको जैसे स्टार्ट मिला वो उसने ही जस्ट नेवर करता गया। दूसरी तरफ से वो नॉर्मल अपना रोल प्ले कर रहे थे बैट्समैन। अगर ज़्यादा विकेटें गिरती और पार्टनरशिप्स ना होती तो उसको इतना मौका नहीं मिलना था कि वो इतने रन्स करता। तो राइटली आई थिंक उसको स्ट्राइक दिया उन्होंने, और मुझे लगता है कि क्लियर थे वो, एज ए टीम स्ट्रेटजी क्लियर थे कि 176 इज़ द स्कोर हेयर, बैटिंग फर्स्ट। सो इट डजेंट मैटर कि पहले खेल रहे हैं या बाद में, हमने वो चेज़ करना है। तो वो उसी को चेज़ करने गए, 3 आउट हो गए, बट दे बेसिकली जस्ट
kept going कि यार हमने ये करना है, करके हमने जीतना है। वसीम आकोट का भी है, तो मैं उसको थोड़ा सा जानता हूँ। अच्छा, किसको? इसको सिकंदर रजा को। वो हमारे साथ आता है जब भी जिम्बाब्वे से आए तो वो प्रैक्टिस करता है हमारे साथ, क्लब के मैचेस खेलता है आके। यही सेम सिकंदर रजा था जिसका इंटेंट नहीं होता था। I remember, yeah. ठीक है, लेकिन उसने अपने पे काम किया, उसने अपने गोल सेट किए और उनको अचीव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो और शिबी उसने वनडे में भी स्कोर किया इस साल, 100 भी किए हैं। देखिए वसीम भाई, जब तक आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे, ये हम इंटेंट की बात करते हैं ना, इंटेंट ऐसे नहीं आता मैं यहाँ बैठ के सोचूं जी इंटेंट आना चाहिए, नहीं। Sure. टीम का गोल अगर आप सामने रखेंगे और जदीद दौर की क्रिकेट खेलेंगे तो हर चीज़ जो है ना वो आपकी आ जाती है। स्कोर हमें भी कि जदीद दौर की T20 क्रिकेट क्या है। जदीद दौर की देखे वो ये है कि आप ये देखें कि कंडीशंस कैसी हैं। एक तो ये एक आपका प्लान होता है, दूसरा आपका ये प्लान होता है कि हमारा बॉल 1 से हम अटैक करेंगे, ठीक है। हम खेलेंगे मैच 180 प्लस वाला, ओके, ठीक है। हमारे साथ 180 प्लस वाला मैच खेलो। मोस्टली जो बड़ी टीम्स है ना वो आपके साथ ऐसा मैच खेलते हैं। फील्ड प्लेसमेंट भी अगर 30 यार्ड सर्कल पे भी अगर आप देखें तो उनके जो लोग हैं वो सर्कल से आ रहे होते हैं, क्योंकि दे आर रेडी टू स्कोर 190 प्लस। हाँ, हमें मार लो, हम कर लेंगे। वो एक वो चीज़ है। तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस टाइप की क्रिकेट खेलना चाहते हो। So this only starts from the top, isn't it? The leadership. Exactly. देखिए वसीम भाई, बात वहीं गोल गोल घूम के आ जाती है क्लैरिटी पे। ठीक है, अगर आपके कैप्टन को पता है कि यार मैं 2-3 साल के लिए कैप्टन हूँ, मैं अगर कोई डिसीजंस लूँगा तो उस पर चीज़ें चलेंगी। इयन मॉर्गन जब कैप्टन बने 2015 में, उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि जो मैं बोलूँगा वो होगा और जो वो बंदा वो नहीं करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। हमने बहुत दफ़ा देखा एलेक्स सेल्स को, जेसन रॉय को, जॉनी बेस्टो को, वो ऐसे ऐसे शॉट्स मारते थे कि हम भी बैठ के परेशान हो जाते थे, यार क्यों भाई, अभी तूने 2 छक्के मारे हैं। वो तीसरे के लिए भी जाते थे, लेकिन दे हैव डिसाइडेड दैट। और देखे 2019 का वर्ल्ड कप वो जीते, 2015 में उसने ये चीज़ सोची और वो एग्जीक्यूशन हुई उसकी, ठीक है। तो प्रोसेस आपका वो ये होना चाहिए, क्लैरिटी और उसके बाद एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं, क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन। वसीम, आप खुद इस पे बड़े अपनी कमेंट्री के दौरान भी बात करते रहे, जो इंटेंट कभी इंटेंट दिखाओ, और चेस जब कर रहे हो तो चेस करो तो विकेटें घर लेकर जानी है। That's what I said. Ireland, now yes, they lost with a big margin, but you know, they were fighting, they were not कि वो अपने शेल में चले गए, जो ही उनकी 2-3 विकेटें गिरी ऊपर, जब स्टर्लिंग जो उनका मेन प्लेयर है वो गया, they never withdrew। उन्होंने ये नहीं सोचा गेंद को लंबा लेके जाएंगे। कितने चीज कटवा दो दिमाग के चुसारे, गेंद को लंबा लेके जाएंगे, 20 ओवर में कितना का लंबा ले जाओगे भाई। तो माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, तो हंस रहे हो, बट दैट्स व्हाट इट इज। मैं तो मी एंड वकार वर देयर ऑल द टाइम। पाकिस्तान टीम को हम पूरा देखें, वील कम बैक टू इट आफ्टरवर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम राइट नाउ। ये आयरलैंड का स्कोर कार्ड देखें और इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंटेंट वाज देयर। नाउ लुक एट द स्ट्राइक रेट ऑफ द मिडिल ऑर्डर एज वेल, अदर देन ये सिर्फ जो बीच में हैरी ने आके जो बैटिंग की है उस पर उनकी थोड़ा सा वो रहा है उनको प्रॉब्लम, बट एवरीबडी एल्स वाज 100, 122, 120, 120, 137 all the way down where Barry came up 5 for 64. जी, and they were still at it, they were still trying to go after this target. अगर आपने मतलब जिस तरीके से वो खेल रहे थे, इवन वो स्ट्राइक रेट उनके सजेस्ट नहीं कर रहे, उनकी जो इंटेंट थी, दे वर जस्ट ट्राइंग टू गो आफ्टर। बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी, उनको समझ वो जो दोनों उनके फास्ट बॉलर इनिशियली नया बॉल किया, दोनों एक तो लंबे हैं, एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था और वो क्लूलेस थे बिल्कुल, बट दे वर ट्राइंग। कभी पीछे हट के मार रहे थे, कभी उस तरफ जा, कभी निकल के मार रहे थे। दे ट्राइड एवरीथिंग, बट एक्चुअली बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि वो उनको समझ नहीं आ रही थी। उसको देखें कि वो दे आर गोइंग आफ्टर देम, इवन 4 आउट हैं फिर भी वो शॉटें खेल रहे हैं। तो इंटेंट वाज राइट देयर, इवन स्ट्राइक रेट्स यहाँ पे उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। सो यू आर सेइंग ऑब्वियसली टू मेक दिस इजियर फॉर आवर व्यूअर्स कि इंटेंट मींस है कि अगर हार भी रहे हो, ट्राई टू कोशिश तो करो जीतने की। इम्पॉसिबल भी है, एटलीस्ट गो आउट विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। इंस्टेड ऑफ जस्ट रोक के सारी बॉलें फेस करके आखिरी गेंद पे सिंगल ले ली, 4 ओवर। वैसे वसीम भाई आपको ना तरीका आ जाता है, या आइडिया। चलो आप वो मैच हार गए, अगला फिर हार गए, लेकिन एटलीस्ट
आप एक राइट ट्रैक पे हैं और आपका वो जो लर्निंग है, चलो मैं आज नहीं मुझसे ये चेज़ हो सका या मेरा स्ट्राइक रेट ऐसे था, लेकिन इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। तो वो तभी आती है कि जब आप उस पर ट्राई करते हैं, तो उन्होंने ट्राई किया। अच्छा वकार, इंटरेस्टिंगली होबार्ट का हमने आज जो शुरू में देखा सुबह स्टैट कि भाई चेस में 23% ज़्यादा इसका सक्सेस रेट नहीं है। 2 मैचेस हुए बैक टू बैक, दोनों मैचेस में हुआ चेस में प्रॉब्लम थी, दे कुडंट चेस द टारगेट सेट बाय द टीम बैटिंग फर्स्ट, वेस्ट इंडीज एंड देन दीज गाइज। What was happening on the pitch? चूंकि एक ही पिच इस्तेमाल की उन्होंने, आज दोनों मैचेस उस पे हुए, सो बुनियादी तौर पे उस पिच पे 4 इनिंग्स हुई, एक इनिंग हुई और फिर कहते हैं जी स्लो हो गई दूसरी, उसमें फिर तीसरी में तो फिर और भी ज़्यादा स्लो हो जाना चाहिए था जब ये वाला मैच हो रहा था, एंड देन फोर्थ शुड बीन रियली स्लो, बट इट डिडंट लुक लाइक इट। नहीं ऐसा नहीं है, आई थिंक पहले वाले मैच में तो वेस्ट इंडीज़ बहुत गंदा खेली है, वेरी सिंपल। आई मीन 160 उनको चेस करना चाहिए था, 50 से ऊपर रन उन्होंने पावर प्ले में कर लिए थे, शुड हैव बीन यू नो इजी टारगेट टू चेस, तो उन्होंने गंदी क्रिकेट की। सेकंड इनिंग्स में मैं समझता हूँ कि जब जो पिच थी है ना, जब आप शाम का मैच खेलते हैं, जब लाइट्स ऑन होती हैं, और मेरा ख्याल है पिच थोड़ी सी स्पाइसी हो गई थी थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया में होबार्ट में स्पेशली। गेंद थोड़ा स्विंग भी हुआ, इनके लंबे बॉलर हैं जिम्बाब्वियन बॉलर, तो गेंद थोड़ा सा स्विंग भी हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी उनको मिल रहा, तो आई थिंक थिंग्स वर harder. 173 was very, very difficult to chase, but first inning I would say कि West Indies very, very poor cricket. Well, we'll talk about that match in a moment. इस वक्त कुछ packages हैं वो आपके साथ शेयर कर लें इस वक्त. Let's take a look at the follow wickets brought to you by Coca-Cola. Right, and with that it is time to take a look at the player of the match brought to you by Zira Plus. ज़रूर, बिल्कुल, of course. शुएब मलिक मुझसे कह रहे थे कि थोड़ा फन लाना है, तो लाएं फन लेके आते हैं अभी। पैकेजेस आते रहेंगे बीच में, दोनों भूख लग गई है। नहीं Good morning, Vicky. Good morning. What's going on? Okay. It's okay. Give me a day or two. It's okay. It's okay. It's okay. एक सेकंड, इन 3 लोगों से एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी श्योर। माशाल्लाह अगर तीनों के इंटरनेशनल मैचेस मिलाए जाएं तो कोई 1200-1500 बन जाएंगे माशाल्लाह। फिर अगर इनकी एज मिलाए तो 200 साल के आसपास बन जाएगी माशाल्लाह। Okay, sure. लेकिन इन्होंने कहा था आयरलैंड, जिम्बाब्वे जीता है और तुमने कहा था जिम्बाब्वे जीतेगा। ए भाईजान ने बॉल सुट के मार देनी है। नहीं, वहाब ने भी ऐसे शुरू किया था, अगर आपको याद हो तो वो भी यू नो ही वाज जस्ट कमिंग अप, बड़ा बहुत टाइम है। वहाब का मैंने बताया था पहला जो हफ्ता आया है, ही वाज अनबिलीवेबल, एक्साइटेड ऑन द फोन, टॉकिंग अवे, हमें बात नहीं करने दी थी। हफ्ते बाद वो सोफे पे सोता है। बड़ी प्रेडिक्शंस ऊपर की। मजा पता क्या है, मेरा जवाब अभी भी नहीं मिला। जवाब नहीं मिलेगा, जवाब क्या दे यार, तुम जवाब ही दे दिया सबने। सोफे के नीचे सोएगा ना तब तस्वीर तेरी आएगी, वो जवाब होगा। ये अब्दुल अल्लाह ही जान। ऑलराइट जी, 3 तोते मंगाओ भाई। ओए होए, एक के तरह ठीक हो ये आए बॉय जो है वो तो फ्लेयर में आ गया है टोटल। हाँ, फ्लैम्बॉयंट एक मिल गया है ना, ठीक पेशन गोई वाला। ठीक पे कोई वाला। चले जी, हमारा भी हालात जो है वो महकमा मौसमियात की तरह हो गए, कोई एक बंदा तो सही मौसम बता देगा आपको। वील फाइंड आउट। जॉश लिटल की बात करते हैं। आज उन्होंने 3 विकेटें ली हैं फॉर आयरलैंड अगेंस्ट जिम्बाब्वे। जॉश लिटल का बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, 2016 से 2021 तक इनकी कोई लगभग, बिकॉज आई एम फॉरगेटिंग द स्टैट देयर, 28 विकेटें थी या 27 विकेटें, और पिछले साल में इन्होंने तकरीबन 29 विकेटें या 30 विकेटें जो है वो हासिल की। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉटन द एग्जैक्ट स्टैट, बट दिस इज द स्टैट दैट केम अप। ह्यूज इंप्रूवमेंट देयर मिसबा। जाहिर है जी, मेरे ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और ये करंट आपकी जो फॉर्म है, रिसेंटली जो क्रिकेट आप खेले हैं, जो यहाँ पे आने से उसको आप नज़र आता है इस परफॉर्मेंस से। यानी आपके कैरियर में डिफरेंट फेजेस आते हैं, आप वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, और एक टाइम आता है जिसको पर्पल पैच आप कहते हैं, या ऐसी परफॉर्मेंसेस आपकी होती हैं जब आप अपनी ज़िंदगी बेस्ट फॉर्म में होते हैं। पर्पल पैच। तो आई थिंक दैट इज़ बेसिकली द टाइम कि आप जो भी बॉल करते हैं, एक तो वो राइट एरिया में भी आता है, रिदम बड़ा अच्छा होता है बॉलर। लक इज गोइंग, एक किस्मत चल रही है, आप अच्छा कर रहे होते हैं, देन लक इज आल्सो फेवरिंग यू। सो आई थिंक दैट हैपन्स, स्पेशली क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। कई दफ़ा आप अच्छी शॉट भी मारते हैं तो वो रिजल्ट वो नहीं होता। ये जो बैट्समैन, लेकिन आजकल की विकेटें वसीम भाई इसी तरह की हैं, वो फाइन लेग थे कैच, वो मिड ऑफ थे कैच, वो देन आई मीन यू गॉट टू बी स्मार्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी वेरिएशंस होनी चाहिए, तभी जाके डीप
एक क्वेश्चन मैं कैचेस होते हैं आपसे पूछता हूँ विकी और मिसबा, आपसे मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था. फॉर इंस्टेंस T20 में वेरिएशन तो ज़रूरी है, बट इफ़ यू आर डिफेंडिंग से 130 एंड यू नीड विकेट्स, व्हाई डू फास्ट बॉलर्स कम एंड बॉल स्लो बॉल्स? एक बैट्समैन जो आके बैटिंग कर रहा है वो छिक्के तो नहीं मार रहा ना, वो तो सी ऑफ कर रहा है कि मैं सिंगल करूं ताकि मैं स्कोर आराम से हो जाएगा. 20 ओवर आप बैटिंग की, जब विकेटें लेनी है तो आप नॉर्मल डिलीवरी से लोगे ना, इन स्विंग, आउट स्विंग, यॉर्कर या बाउंसर. स्लो बॉल से तो कोई आउट नहीं होगा अगर वो आपको मारने नहीं जा रहा तो. सो ये भी एक माइंडसेट है आजकल की क्रिकेट का कि बॉलरों ने चाहे कुछ भी सिचुएशन हो 2-3 स्लो बॉल करने ही करने हैं अननेसेसरीली. वो बेसिकली वसीम भाई बॉलर्स जो है ना वो बड़े डिफेंसिव हो गए हैं. माइंडसेट डिफेंसिव हो गया. T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली जाती है डे इन डे आउट के, वो बॉलर सारे डिफेंसिव हैं. सो वो एक आपका एक रिदम वो बन गया हुआ है, आपका एक माइंडसेट है कि मैंने इसी तरह की बॉलिंग करनी है. ऑल्दो यू आर 100% राइट कि अगर आप छोटा टारगेट है देन यू हैव टू बॉल हार्ड लेंथ एंड यू गॉट टू बॉल क्विकली एंड यू हैव टू हैव स्लिप इन पोजिशंस. या कैचिंग पे पोजीशन पे आपके पास फील्डर होंगे, आपको अर्ली विकेट्स मिलेंगी, तभी आप मैच में आओगे. तो आई मीन that what I feel कि it's all about up here. Okay. With that, it's time for the flying moments brought to you by Emirates. And with that, it's time to take a look at the best bowler brought to you by McDonald's app. और उसके साथ ही वक्त हुआ है Jubilee Safe Hands का, brought to you by Jubilee Insurance. Game changing moments brought to you by Pepsi Cola. Super moments of the day brought to you by Jazz. Refreshing moments brought to you by Tapal Danedar. और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ है एक वक्फे का ऑन द पवेलियन. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप ऐप. और याद रहे कि आपके सवालात आज से लेने शुरू करेंगे ट्विटर के ऊपर, इंस्टा पे या फेसबुक पे #AskThePavilion. और इसके अलावा ऑफ कोर्स हमने आपको बताया था जो दूसरी चीज़ें हैं मूव ऑफ द पवेलियन वगैरह, इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊँगा. बट आज द पवेलियन पे हमें अपने पैगाम भेजने शुरू कर दीजिए कि आपसे कुछ देर बाद हम जो है गुफ्तगू करेंगे और आपके सवालात भी लेंगे. सो सी यू on the other side of the break. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं द पवेलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स एंड ऑन आवर ARY ज़ैप ऐप. आपसे कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे पिछले मैच की बिटवीन जिम्बाब्वे एंड आयरलैंड. अब चलते हैं पहला मैच जो आज खेला गया और वो था वेस्ट इंडीज़ बामुकाबला किससे, स्कॉटलैंड. सॉरी, मैच समरी पे ज़रा नज़र डालते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी. आई डू अपोलोजाइज, आई वाज हैविंग अ वसीम अकरम मोमेंट देयर. 160 for 5 there by Scotland. Really great effort there by Muncy right on top and nicely played throughout the innings. 118 West Indies problems already there for the West Indies. Scotland winning that convincingly by 42 runs. Holder there bowled well, took 2 wickets, but it was a strange start for the West Indies even when they were bowling. Waqar right off the start. उन्होंने जो bowling choices की, I think that was questionable. देखिए वसीम भाई हमसे हमेशा सवाल पूछते हैं. मैं अब मेरा ख्याल है हमें भी इनसे पूछने चाहिए सवाल कि जब आपके पास अल्जारी, जोसेफ, होल्डर, ये ऑडियन स्मिथ वगैरह ये सारे ये ऑल ऑफ दीज बॉलर्स आर देयर एंड देन यू गिव द न्यू बॉल टू मायर एंड Akeal Hussain, and then what is the thinking behind that? Moment of madness, probably. Yeah. By the captain or by the think tank. Yeah. I mean, Phil Simmons is a very experienced coach. Yes. जितना वो कोच पुराना है उतना ही बड़ा भी है वो. Yeah. He's huge. Yeah, no. And plus, like यही हम डिस्कस कर रहे थे जब सुबह हमने देखा कि वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग की, पता था कि विकेट फ्रेश है, उस पर बॉल ने सीम होना है अर्ली ऑन, एंड स्पेशली अगेंस्ट नॉट द top sides, associate nation. We know कि स्कॉटलैंड इज़ अ गुड साइड, बट आप जो आपको मायर्स को 2 ओवरों में 24 हो गया तो सारा प्रेशर तो वहीं ऑफ हो गया. ऑल दो इन्होंने विकेटें गिरा ली, उनकी 4 उनके आउट थे 117 पे इन अबाउट 15 ओवर्स में. बट उसके बाद अब एक ने नॉट आउट खेला है. अगर ये देखो उसका स्ट्राइक एंड में 124 का है मंजी का, बट उसने इनिंग को होल्ड रखा. उनको पता था कि विकेट मुश्किल है, इस पे 150 to 160 इज अ गुड टोटल टू डिफेंड. बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट इज इन अ सैड स्टेट. क्या क्रिकेट होती थी वेस्ट इंडीज की. आई मीन ट्वाइस दे आर T20 वर्ल्ड चैंपियंस. वैसे भी जो उन्होंने स्टार्ट लिया ना मायर से और अकील हुसैन से, अगर आपने यही स्टार्ट लेना था तो आप पहले बैटिंग करते. एग्जैक्टली.
क्योंकि अगर सेम बॉलर्स के साथ आप अटैक करवाते तो आपके स्कोर्स लगे होते, बोर्ड पे स्कोर लगे होते, तो आप डिफेंड कर रहे हैं, फिर वो स्ट्रेटजी समझ में आता है। लेकिन विद दीज टू बॉलर्स टू स्टार्ट ऑफ विद, मेरे ख्याल में वसीम भाई, आप चाहे आपकी ये स्ट्रेटजी हो, बट लुकिंग एट अपोजिशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर आयरलैंड को देखें, नॉर्मली वो इन कंडीशंस में खेलते हैं, मीडियम पेसर्स को जहाँ बॉल होता है वहाँ पे भी वो अच्छा खेलते हैं, क्योंकि दे आर यूज्ड टू। आयरलैंड की कंडीशंस ऐसी हैं, इंग्लैंड स्कॉटलैंड की कंडीशंस ऐसी हैं, फिर वो इंग्लैंड में जो कोई काउंटी खेलते हैं वहाँ पे भी कंडीशन ऐसी हैं। हाँ, वो पेस से उनको मुश्किल ज़रूर होती है, अर्ली ऑन अगर पेस वाला बॉलर आएगा तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। तो आप उस टीम को देखते हुए आपको स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, आप वर्ल्ड कप के लिए एक स्ट्रेटजी बना के आए कि ये बॉलिंग हमारी होगी, बट लुकिंग एट द टीम यू हैव टू चेंज दैट। आप ये नहीं कि एक स्टीरियोटाइप आपने ज़हन में रख लिया कि हाँ ऐसे हमने जाना तो ऐसे ही रखना। अगर मीडियम पेसर लगाया भी था हाँ, तो पिच पे तो बॉल करता, पहले 2 ओवर्स में 2 फुल टॉसेस थी, ठीक है, वो यॉर्कर करने गया, वो उसका 150 स्ट्रेंथ है, यॉर्कर कर दूं नए बॉल से। लेकिन उसने तंग तो जरूर करना था अगर वो पिच यूज करता। अगर वो लेंथ पे मारता, बैक ऑफ अ लेंथ, दोनों स्विंग करता, आई कैन अंडरस्टैंड प्रोबेबली। और एक और चीज़ वसीम भाई जो हम कल डिस्कस कर रहे थे चीज़ें, कि मीडियम पेसर को आपने सीम अप बॉल्स करने से नहीं देना है। और उन्होंने देखें, अगर हम उनके बैट्समैन को देखें स्कॉटलैंड के, तो वो दोनों ने कोई कभी डाउन द विकेट आया है, कभी क्रीज में उसने रूम दिया ताकि वो सेटल ना हो सके। पहले ओवर में उसने वॉक करके खेला है, एक फुल टॉस तो उसने थोड़ा सा वॉक करके बनाई है, तो आई थिंक वही कि वो यूज्ड टू है मीडियम पेसर्स को। कंपैरिजन देखें जिम्बाब्वे की बॉलिंग से इनकी बॉलिंग, वो मजर रब्बानी ने क्या बॉलिंग किया, पीछे पीछे मारता रहे। दूसरे बॉल में अब पहली ओवर में फुल टॉसेस थी। अब देखना, आप मिस 125, 120 बॉल इज सीमिंग, बॉल इज स्विंगिंग, एंड यू गिवन अ बॉलर टू मिलिट्री मीडियम पेसर who might be a non, it's probably not a regular bowler। और उससे पता क्या हुआ है, उससे एक और चीज़ ये हुई है कि जो बाकी के बॉलर आना था जिन्होंने बॉल करने के लिए, तो उनको भी ये समझ आ गया कि नहीं भाई, अब हमारी पेस जो है वो साइड पे हो गई, अब इन्होंने आना है हमारे पीछे। स्टार्ट अच्छा हुआ तो एंड अच्छा हुआ। इसीलिए T20 क्रिकेट में या वाइट बॉल क्रिकेट में पहले 3 बैट्समैन जो हैं उनमें से एक बड़े रन्स करता है, तो आप स्टैट्स निकाल के देख लें, वो टीम 80 to 90% जीतती है। वेस्ट इंडीज़, हम सारे बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं, और हमेशा से ही अटैकिंग टीम रही है। T20 वर्ल्ड कप इसीलिए वो दो जीते हुए हैं, क्योंकि वो दे कम अग्रेसिव विद द बैट एंड विद द बॉल ऑल्सो। आप उनके पिछले प्रीवियस मैचेस भी देखें तो बॉलिंग के साथ भी वो अग्रेसिवली अर्ली ऑन आए, अर्ली ऑन उन्होंने विकेटें निकाली हैं, तो वो उनकी ये सिचुएशन बनी है कि वो वर्ल्ड कप जीते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लगा है कि ये उनकी जो बैटिंग देखूँ तो मैं समझ आती है कि ये अटैकिंग, ये सारे ऑलराउंडर खिलाते हैं, बड़े हिटर्स हैं, दैट्स गुड। बट द थिंग इज़, अगर आप बॉलिंग में इतना गंदा आप कर दोगे और आप इतने डिफेंसिव स्टार्ट करोगे, टॉस जीत के आपने बॉलिंग की और आपने कीची मिची बॉलर लगा दिए हैं, एंड देन यू आर गोना स्ट्रगल। आई मीन यू हैव गॉट द पावर, बट you know, मेरी समझ में नहीं आया कि you know, कप्तानी क्या की। So basically you guys, I mean, what I assessed so far, जो मैंने वेस्ट इंडीज़ का एक ही मैच हुआ, it's early days in this World Cup, कि रेगुलर स्पेशलिस्ट नहीं है, बिट्स एंड बॉब ज़्यादा हैं, बिट ऑफ बॉलिंग, नहीं बॉलर्स हैं वसीम भाई, अलजारी जोसेफ है, होल्डर प्रॉपर बॉलर्स हैं, स्विंग करते हैं, सीम करते हैं, लंबे हैं, और आपने बॉल दे दिया। होल्डर ने आते साथ ही ब्रेक थ्रू लिया। जब ये 2 वर्ल्ड T20s जीते हैं तो डैरन सैमी इनके जो थे वो कैप्टन थे, एंड आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन विद डैरन सैमी एंड ही एक्सप्लेन्ड कि मैं इन सब को कैसे जेल करता था, क्योंकि इनके बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, अगर इनकी मर्जी की चीज़ ना हो रही हो तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम कि ये आएंगे और आके ना पूरा फोकस के साथ खेलेंगे। So Darren Sammy spent a lot of time on these guys कि उनको ये करना है कि किसी तरह जेल करें, ये इकट्ठे होके खेलेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उस टीम में और इस टीम में काफ़ी फ़र्क है। जैसे उस टीम में क्रिस गेल था, मार्लन सैमुअल्स को उन्होंने रोल दिया हुआ था कि आप एक एंड को संभाल के रखो, वो बहुत सारी डॉट बॉल्स खेलता था, लेकिन इनके पास पावर है, 10वें नंबर तक होती थी। डैरन सैमी खुद नंबर 10 पे आते थे। अगर हमें याद हो तो जो 4 छक्के उसने मारे थे ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को कैलकाटा स्टेडियम में फाइनल्स में, तो उस टीम में और इस टीम में फ़र्क है। बट ये क्या कर रहे हैं, ये वो सेम इंटेंट के साथ खेल रहे हैं या सेम प्लानिंग के साथ खेलना चाह रहे हैं जो 2 वर्ल्ड T20 जीतेंगे, लेकिन प्लेयर्स की स्किल में फ़र्क है। No Pollards there, no legends Pollard, that they had. Chris Gayle, Andre Russell। जो एक चीज़ हमें जो मैच
जितने भी हमने अभी 2 दिन में देखे हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि नया बॉल इट मैटर्स, हर जगह करता है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग। अच्छा, एक डिफेंसिव बॉलर है आपका कि आप सोच रहे हैं कि वो इसको मारने जाएगी टीम और आउट होगी। एक आपके पास अटैकिंग ऑप्शन है कि जो बैट्समैन के डिफेंसेस को बीट करके आउट करेगी, जैसे अलदारी जोसेफ ने किया है, स्टेप में आउट किया उसने बाउंस के साथ, और पॉल स्टर्लिंग को उसने बोल्ड किया है नगारवा ने। तो वो आपने वो वाली ऑप्शंस लेनी है। 6 ओवर में अगर आपने आउट ना किए तो लेटर ऑन आपके लिए ऑस्ट्रेलिया में आसानी नहीं है, आपको मुश्किल हो। ये बॉलिंग कार्ड जरा देखते हैं वेस्ट इंडीज़ का। दीज वर द बॉलिंग फिगर्स फॉर द वेस्ट इंडीज़ टुडे, और जिस पे सारे बात कर रहे हैं कि द बॉलिंग वाज अ लिटिल ऑफ। आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा है, बस रास्ते में पहुंचने वाला है थोड़ी देर में। ये मेरी तरह तो नहीं है, बिल्कुल आप ही की तरह चप्पू वाली कश्ती पे आ रहा है बॉलिंग कार्ड जो है हमारा। आ रहा है। मायर्स ने 4 और 2 ओवरों में 24 दिए। मुबारक हो, ये लें सर, ये कंग्रेचुलेशंस। ये भी आप नीचे के 4 देखें जी, ऊपर के 2 छोड़ दें, नीचे के 4 देखें। जोसेफ, मैकॉय, होल्डर, स्मिथ, उनका बाद में आके, जबकि उन्होंने 50 रन करवा दिए थे ऊपर से पहले 5-6 ओवरों में, तो उसके बाद इन्होंने आके कंट्रोल की गेम, विकेटें भी ली और गेम को वापस कुछ खींचा। अदरवाइज तो ये हो सकता था 180 भी कर जाते अगर उन्हीं को लगाया। ये और अच्छा हो सकता था, लेकिन जब आप कैसी भी पेस ले आएँ, कैसी भी एबिलिटी वाला बॉलर ले आएँ, जब वो 2 सेट बैट्समैन को बॉलिंग करता है तो उसकी अप्रोच, माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो वो उस वक्त दोनों सेट थे जब मेन बॉलर्स आगे बॉल किए। यही अगर वो भी नए बॉल से करते, जैसे मिसबा भाई ने कहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता, विकेटें मिलती और जो टोटल था वो नीचे आता। बिल्कुल। Now let's not forget, Muncy played a really good innings today. He did. According to the situation. According to the situation, adapting, very well to the situation. But इनकी बैटिंग के अंदर बाद में Conor McLeod and Chris Greaves, both of them strike rate 164 and 145. A lot of intent. Although cameo innings खेली, एक ने 23 किया 14 गेंदों में, एक ने 16 किया 11 गेंदों पे, बट दूसरा बैट्समैन अदर एंड पे था ना सेट, विकेटें भी हाथ में थी, उनको उन्होंने असेस कर लिया था। जब टीम आपको पता लग जाता है, ओपनर्स मैसेज देते हैं कि जी इस विकेट पे 160 to 170 इज अ गुड टोटल टू डिफेंड। वो बड़ा ज़रूरी होता है मैसेज आपको बाहर टीम में भेजना, ताकि एक बैट्समैन, वो उन्होंने प्लान किया होगा मंसी को कि तू खेलता रहे एंड विल प्ले अराउंड यू। एंड मंसी ग्रेट यूज ऑफ फीट थ्रू आउट, played really well. I mean, ऐसा लगता नहीं है कि he is a big hitter. हालांकि थोड़ी सी बारिश आई तो उसके बाद थोड़ा सा स्टक अप जरूर हो गया, लेकिन उससे पहले जब तक बारिश नहीं आई थी, he played a very fluent knock. He looked $1 million. Very very fine batsman, very compact batsman. देखें ना जिस तरीके से वो उसके हाथ चलते हैं, तेज हाथ चलते हैं, लंबा है, यूज़ करता है अपने लीवरेज जो होती है वो यूज़ करता है, तो he is a fine batsman. It's just the poor strategy और poor planning by West Indies जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली और एंड ही अवेल्ड इट ब्यूटीफुली। जी बिल्कुल। लेट्स टॉक अबाउट लीडरशिप, बिकॉज शुएब ने भी बड़ी बात की कि जी लीडरशिप बड़ा मैटर करती है। आपने कहा क्लैरिटी के लिए कौन देगा, क्लैरिटी देगा। अब ये वेस्ट इंडीज़ को कौन देगा लीडरशिप? आई मीन देव गॉट अ ग्रेट कोच इन द ड्रेसिंग रूम, but why is there things missing? You see, I don't know that much West Indies cricket culture because I haven't been to West Indies, but whatever we have seen and read, every cricketer come from a different island. They are kind of different nation. So when they play for West Indies, they come under one flag. So like Vicky or Shebi said, इनके moods बड़े होते हैं, इनकी different problem होती हैं. So you need someone. Simmons is a very experienced coach. 80s में और 70s में और even 90s में भी तो यही था, इनके islands के सब different आते थे, but they were different breed then. Yeah. I feel कि it's the money. One thing, money, क्योंकि सारे IPLs और इधर उधर खेलते हैं, they make lots of money, and then of course जब आपके पास पैसा आता है तो then you moods. No, but Vicky, money I understand, but money also should motivate you as a cricketer. कि भी I'm earning money, I want to do this for another 20 years, and that's come up with attitude. बड़ा ज़रूरी, attitude is a habit. भाई वो है, वो बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे ज़्यादा बनाने हैं पैसे, मुझे लंबा खेलना है, नाम मेरा है दुनिया में। लेकिन मसला ये है ना कि किसके लिए खेलना, वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलना है कि या पैसे? तो बाहर से आप देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा, वो लोग फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, जो लीग्स हैं आपको जो पैसे देती है, वेस्ट इंडीज़ तो उतने नहीं देता। तो आई फील कि कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ प्ले करती है इनके दिमाग में। सुनील नारायण, he is playing but he doesn't make himself available for the West Indies team. Why? उनके बॉलिंग एक्शन का मसला है। What does that have to?
because International he's में been ज़्यादा scrutiny होती through है। quite a few times under this international, तो मेरे ख्याल में इसलिए जो है वो international So he cricket जो wants है to stick to उसको the franchise cricket. Franchise cricket. फ्रेंचाइज में इतनी स्क्रूटनी नहीं है। नहीं, फ्रेंचाइज में मुझे नहीं लगता, बट उन्होंने काम किया है अपने एक्शन पे, और जब भी उनका एक्शन कॉल हुआ है ही वर्कड ऑन हिज बॉलिंग एक्शन। और अगर आप देखें तो जैसे आज सिकंदर रज़ा कर रहे थे, तो ये सिकंदर रज़ा ने उन्हीं से ये चीज़ सीखी है कि आपका आर्म और पहले से ही सीधा हो, ऐसे पीछे की तरफ लॉक्ड हो, ताकि जब आप डिलीवर करें बॉल तो वो वैसे ही सेम पोजीशन में आए। सिकंदर तो कभी भी चक नहीं करता था या बैंट नहीं था उसका। नहीं, बट एटलीस्ट जो वो तो आप छुपा ये जाता बॉल बेसिकली। सिकंदर पहले सिर्फ ऑफ स्पिन करता था, अब उसने कैरम बॉल भी शुरू कर दिया। आज हमने देखा उसने एक यॉर्कर भी मारा, तो पीछे आप मतलब यू कांट टेल एज अ बैट्समैन के कौन सा बॉल करेगा वो, वरना आप ग्रिप से आइडिया कर लेते हैं बॉल की। बेसिकली दो रीजन है, एक तो ये भी है और दूसरा ये है कि एटलीस्ट बैट्समैन के माइंड में डाउट क्रिएट करना कि ग्रिप नज़र उसको नहीं आ रही, तो बहुत लेट उसको नज़र आए, ताकि उसको डिसीजन मेकिंग में पहले रनअप से ही ना पता चल जाएगा ये क्या करने जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जब सीम अप करते हैं तो आप उसको इस तरह होल्ड करते हैं, और अगर आपने कैरम बॉल करना है तो आपकी ग्रिप से नज़र आ जाता है दूर से, और ऑफ स्पिन करनी है तो आपने इस तरह, तो वो अगर आप यहाँ रखेंगे हाथ तो क्लियरली बैट्समैन को पता चल जाएगा पहले ही कि ये क्या करने लगा है। जब आप लास्ट मोमेंट पे करेंगे तो आपके पास टाइम कम होगा। अच्छा, ये इवन फखर पेसर्स भी जो होते हैं ना, जितने भी आप जो बहुत सक्सेसफुल T20 में या वाइट बॉल क्रिकेट में जो होते हैं, उनका जो जिसका भी हाथ पीछे से आएगा ना, जो थोड़ी देर के लिए आपको बॉल नहीं नजर आएगी, जिसमें मलिंगा था, शोएब अख्तर था, मेरा भी कुछ ऐसा है, मैं तो T20 खेला नहीं, लेकिन ऐसे एक्शन था कि बॉल नजर नहीं आता, एंड देन सडनली अपीयर्स, वो आई थिंक दे हैव लॉट ऑफ सक्सेस एट दिस लेवल। बीइंग अ बैट्समैन, आपका भी, आप तो कभी बार राइट हैंड में होल्ड करके आते थे बॉल, बिल्कुल आखिरी मिनट पे यूज्ड टू स्विच ओवर। आई थिंक या वो आइडिया था कि वो रिवर्स स्विंग लेट नजर आए। ये देखें आप, ये पीछे बिल्कुल सही है, यॉर्कर भी कर रहा है, सीधा भी कर रहा है, ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट, सो दैट शोज कि डजंट मैटर व्हाट एज ग्रुप यू आर, यू कैन एक्चुअली इंप्रूव योर गेम, स्पेशली इन क्रिकेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें जब आप लोड करते हैं, उसने लोड यहाँ किया हुआ है, और जब आप यहाँ से बॉल करते हैं तो यहाँ आप थोड़ी देर बॉल रखते हैं और फिर जाते हैं, तो आपको एक बॉलर बैट्समैन को क्लियर व्यू उसका वो आपको नज़र आता है। अब यहाँ से वो जब सामने हाथ आता है तो ऑलरेडी वो घूमता हुआ आता है, घूमते हुए में ग्रिप को और उसको पिक करना आसान नहीं है, ये कौन सा बॉल कर रहा है। और इसमें भी आर्ट है, बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ आ रही है और नॉट इनफ टर्न, रिगार्डलेस आप ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप उसे कवर्स में खेलना शुरू कर दें, जो ऑफ साइड का एरिया, ताकि वो आपके स्लॉट में आए और फिर आप उसे मिड विकेट या मिड ऑन जो है 6 रन मार सकते हैं। सेटअप करें ना आप बॉलर को, साइड पे खेलना भी आना चाहिए था ना, नहीं नहीं, अगर बंदा सिलेक्ट कर रहे हैं आप तो उसको सारी साइड में खेलना आना चाहिए ना। अभी जो वकार भाई ने बात की है ना कि फास्ट बॉलर इवन वसीम भाई करते थे, वहाब ने लेटर ऑन ये शुरू किया था कि वो अंपायर के पीछे से आते थे। वसीम भाई यूज्ड टू डू दैट कि आप बिल्कुल पीछे से आए और बिल्कुल करीब आके एकदम आप निकले अराउंड द विकेट से, तो वो एज अ बैट्समैन मैं अगर खेल रहा हूँ ऐसा कोई भी, मैं अगर बैट्समैन हूँ और मुझे वो नजर नहीं आ रहा तो जगह से आगे प्रॉब्लम क्लोजर होगी। अंपायर नु कैन गेन करा दे। ये हुए। अच्छा, एक और बड़े इंटरेस्टिंग जो बॉलिंग में आज हमने देखा, वो मार्क वॉट हैं ये शोएब, जिन्होंने ये 24 यार्ड से गेंद करते हैं, बहुत पीछे से करते हैं। व्हाट्स दिस ऑल अबाउट? बिकॉज अगेन टुडे ही वाज सक्सेसफुल विद दैट, ही हैज बीन वेरी सक्सेसफुल विद दिस बॉल रिसेंटली। मलिक साहब ने तो रन्स किए हैं उसको। जी, ये ना डिसीव होता है इससे बैट्समैन, और अगर हमने देखे जी सकलैन भाई ने ये शुरू किया था, क्योंकि ही यूज्ड टू बॉल दूसरा, तो बेसिकली ये सकलैन भाई ने शुरू किया था कि क्रीज के पीछे से जो है मैं बॉल करूंगा। सम टाइम बैट्समैन जो क्या करता है, अच्छा बैट्समैन जो होता है वो आपको ना असेस करता है कि आप किस स्पीड से बॉल कर रहे हो, किस लेंथ पे कर रहे हो, फिर वो आपको टारगेट करना शुरू करता है। तो जब आप पीछे से भी कर रहे हैं और प्रॉपर जो क्रीज है उस पर से भी कर रहे हैं, तो बैट्समैन सेटल नहीं होता। जब सेटल नहीं होता तो आप एयर में कभी उसको डिसीव करते हैं, कभी आप थोड़ा स्लो बॉल फेंकते हैं, कभी थोड़ा तेज़ बॉल फेंकते हैं। सकलैन भाई यूज्ड टू बॉल दूसरा क्रीज के पीछे से, क्योंकि वो थोड़ा होल्ड होता था बाउंस के साथ पिच पे लगने से, तो उसका बड़ा एडवांटेज हुआ। ये अब ये देखें, और इससे एक चीज़ और होती है, कभी भी बॉल आगे नहीं गिरता बैट्समैन के, और हमें वेस्ट इंडीज़ वालों का पता है, वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं,
तो डाउन द ग्राउंड बहुत अच्छा खेलते हैं, जो अंपायर के पीछे का एरिया है। तो उसमें देखें अगर ये प्रॉपर क्रीज से भी किया होता, खैर बाउंड्री भी बड़ी थी, लेकिन प्रॉपर क्रीज से किया होता तो और आगे बॉल गिरता। तो यही इसकी वजह है। Very clever strategy. Very clever strategy. But he had a lot of success. That's what I'm saying. Very He clever. had lots of success in the last World Cup also. I Yeah. remember qualifying में he was bowling Economy beautiful. But wise, see, he you've is scored the a lot best of runs bowler. against him, Shoaib. How do you tackle something like this? देखिए स्पिनर का ना आपको ये है कि आप असेस करें वो क्या कर रहे हैं। खैर वो किसी भी बॉलर के अगेंस्ट करें आप, और दूसरा ये है कि जब आप बॉलर के पीछे आप जा रहे हैं उसको मारने के लिए, तो फिर आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं अगर निकला तो मैं आउट हो गया तो क्या होगा। तो ये सारे थॉट्स आपको पीछे छोड़ने पड़ते हैं। और दूसरा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके चांसेस आपको दूसरे सक्सेस मेरे ख्याल में मलिक ये भी है कि जो इसकी क्योंकि स्पेशलिटी ये है कि जब कोई बैट्समैन उसको जिसको कहते हैं लूटने जा रहे हैं या बड़ी हिट मारने जाता है, ही नॉर्मली बिकम्स मोर इफेक्टिव। वो बॉलिंग ही ऐसी करता है, बाहर कर रहा है, यॉर्कर कर रहा है। तो जो नॉर्मल खेलता है बैट्समैन और क्रिकेटिंग शॉट्स नॉर्मली कि अगर बाहर करेगा तो एक्स्ट्रा कवर मारूंगा, अगर थोड़ा सा बाहर इधर करेगा तो कट मारूंगा, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा रन्स इसके अगेंस्ट कर सकता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है। जो बड़ी हिट मारने जाता है उसको ये मुश्किल आई थिंक बहुत सारे ना हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं जब हम स्पिनर को खेलते हैं, स्पेशली जब आप डाउन द ग्राउंड जाके स्पिनर को शॉट मारने जाते हैं। अगर मैं वहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ जी बिल्कुल तो जाए मैं, जरूर। ये तो बिल्कुल amazing. This is perfect. You want me to ball or just leave it? No, you क्योंकि मलिक तुसी कहोगे रोक मेरे ली ख्याल जा। में डाउन द विकेट जाके मलिक की जितने भी शॉट्स हैं एक्स्ट्रा कवर सामने वो हमेशा बहुत ज़बरदस्त। ये हम लोग जब डाउन द विकेट कोई भी बैट्समैन जाके खेलता है तो वो मिस्टेक क्या करता है, जिससे आप अगर कोई बॉलर स्टंप्स में बॉल कर रहा है तो आप उसके साथ डील कर लोगे क्योंकि आपको इजी है, आपसे वो बॉल दूर नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई आउटसाइड ऑफ स्टंप कर देता है या थोड़ा लेग स्टंप पे कर देता है तो वो आप उसको डील नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डाउन द विकेट जाते हैं तो पहला स्टेप हमेशा आपका सीधा होना चाहिए। सीधा मतलब जो सामने स्टंप्स लगी हुई हैं उसकी तरफ। तो जो आपका फर्स्ट ये आप आए हैं, फर्स्ट स्टेप आपका है टूवर्ड्स द स्टंप्स जहाँ पे अंपायर खड़ा हुआ है। सेकंड जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका जो स्टेप है वो जाना चाहिए टूवर्ड्स द बॉल। वो शायद आउटसाइड ऑफ स्टंप है या इस तरफ है या सामने है तो आप एक और सामने वाला स्टेप लेते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप है तो आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप वो स्टेप लेना है। वो इसलिए लेना है कि आप बॉल के करीब जाते हैं। जब आप बॉल के करीब जाते हैं, और आजकल के बैट्स ऐसे हैं कि आधी शॉट भी बाहर चली जाती है। वन मोर क्वेश्चन, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ मिड ओवर्स में। अब जैसे निकलना कब है स्पिनर को, कई तो पहले निकल आते हैं ना, वो यही होता तो निकल आता तो अपनी लेंथ वो खींच लेता है, तो आप कब निकलते हो जब वो बॉल छोड़ता है? उसमें वसीम भाई बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आपको ये देखना है कि पिच जो है उस पर बॉल टर्न हो रहा है या सीधा आता है स्पिनर का। अगर सीधा आ रहा है तो अगर बॉलर ने अभी बॉल डिलीवर भी नहीं किया और आप निकल आए हैं तो आप समहाउ उसको मैनेज कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं कि टर्न नहीं है पिच में इतना। लेकिन अगर टर्न हो रहा है सो मेक श्योर यू कम डाउन द विकेट जब रिलीज हो चुका हुआ है बॉल। वो मगर वो प्रैक्टिस से आता है, वो स्ट्रेट अवे नहीं आ सकता। बिल्कुल प्रैक्टिस से आता है। और दूसरा इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि आप नेट्स में जो है बहुत सारे स्पिनर्स लगा के खेलें और एक टाइप की पिच पे नहीं खेलें। आप टर्निंग पिच पे भी खेलें और आप जहाँ पे बॉल टर्न नहीं हो रहा वहाँ पे भी खेलें, क्योंकि अगर आप टर्निंग पिच पे खेल रहे हैं तो एक कॉमन सेंस है कि आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन्स मिलेंगे क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है। लेकिन अगर बॉल टर्न नहीं हो रहा तो फिर आपका गेम प्लान ऐसा होना चाहिए कि मैं डाउन द ग्राउंड खेलूंगा, सामने खेलूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप असेस करें। शेबी, you just said कि जी पहला स्टेप जो आपका है वो it has to be straight होना चाहिए। आपको सीधा निकलें and then you see the line of the ball and then you react accordingly। बिल्कुल। लेकिन आपके पास टाइम कितना होता है कि you taking the first step before leaving the ball because you have to also take the second step। Remember? एक फ्लो में दिखाएं जरा। Let's say the first ball that you're receiving is outside the off stump. So एक फ्लो में let's assume कि ये outside second या third off stump के बाहर पड़ रही है बॉल। ठीक है? देखिए ये मेरा
फर्स्ट स्टेप है, या ये सच ठीक है। अब मुझे पता है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप है ये बॉल, तो मेरा सेकंड स्टेप इस तरफ जाएगा। अब इसको पूरे फ्लो में लो एक दफा, लेट्स सी दैट इन वन फ्लो। ये फर्स्ट स्टेप और ये इधर चला गया, लेट्स ठीक है। डू द और सेम। अगर बॉल आपकी टांग की तरफ आ गया, ये आपका फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड इस तरफ तो चला आपने गया। फ्रंट फुट थोड़ा खोलना भी है अगर टांग पे आ जी रहा है। बिल्कुल। देखें वसीम भाई, थोड़ा सा ना हमें ये भी देखना है कि हमारे अंदर कंप्यूटर सेट है। अगर हम हर चीज़ को फिक्स करने जाते हैं तो चांस नहीं है। ब्रेन आपको वैसे ही वो लेके जाता है, सिर्फ आप मैसेज देते हैं अपने ब्रेन को कि जिस तरफ बॉल होगा मेरा सेकंड स्टेप उस तरफ जाएगा। तो इससे स्पिनर जो है उसके साथ उसको ये भी अब डर आ गया कि यार ये मुझे कभी भी निकलेगा, ये छिक्का मार दे, वो कहेगा भाई सिंगल ले तू उधर आ। और फिर एक ह्यूमन नेचर है कि आप कोई भी बॉलर जो है वो चाहता है उसे 3 सिंगलें हो तो वो चाहता है कि मैं सिंगल रोकूं। जब सिंगल रोकेगा तो वो बाउंड्री खाएगा आपसे। Yes, wonderful. Thank you. That was really good, Shoaib. Really appreciate it. अच्छा, आज वसीम एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और वो ये थी कि स्कॉटलैंड के जो खिलाड़ी थे फील्ड पे जो मौजूद थे जी, वो सबके पास पर्चा था. So I thought it was maybe Duckworth and Lewis, but they confirmed during the match. I thought ये इसकी माँ ने से क्या 1 किलो बर्फ थे नाल 3 किलो नींबू लेके आई। 3 पैनाडोल भी। ये क्या हो सकता है? You guys can tell me, present cricketers. This Duckworth Lewis तो है नहीं। मुझे लगता है मैचअप है। ग्रोसरी की लिस्ट मुझे लगता है मैचअप है। मुझे ऐसे लग रहा है जो आपने पहले कहा है ना, हाँ, pretty close to that. कि होबार्ट जा रहे हैं उतनी ठंड होएगी तो जरा बर्फ लेके आई। According to the batsman, मुझे लगता है on a serious note, I think matchups on a serious note, according to batsman, मैचअप है कि इसको कौन सा बॉल करना है। नहीं बट अच्छा इसको बॉल कौन सा करना जी जी जी। बट एज अ बॉलर आई वुड नो, आई डोंट हैव टू कैरी अ पर्ची जनरली स्पीकिंग। मुझे पता है कि वो थोड़ा सा आजकल आपको पता है ना कि वो थोड़ा सा आपने दिखाना भी तो होता है ना। जरा दोबारा दिखाएं, अगर दिखाना ही होता है तो दोबारा स्क्रीन कोई रुमाल काट लेना है। ये कागज जो इस्तेमाल हो रहा था आज, पर्चियां कहते थे हम एग्जाम्स के दौरान में, यार पर्चियां फर्रे लेके गया ये फर्रा क्या कह रहा है? बकौल वसीम के इस फर्रे में हो सकता है फकत कि उसको कोई डेमेंशिया या जाइमर वगैरह का कोई इशू हो, कोई याद we don't know come on, क्या हो सकता है? कोई याद नहीं रहता, कोई चीज हो लिख के लेके आया। अगर ये हो सकता है जो मिसबा भाई ने कहा है कि जो उन्होंने डिस्कशन की होगी मीटिंग में, वही ना, that's what I'm saying जी। तो इस बैट्समैन को इस तरफ बॉलिंग करनी है, स्पेशली लेफ्ट आर्मर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने ये पढ़ के फिर विकेट भी ली, if you remember, if I'm not और अगर ये दोबारा से हम देख सकें तो पूरन का नाम पीछे नजर आ रहा था, तो पूरन खेल रहे थे और वो उनको बॉलिंग कर रहे थे। हमें पूरन नजर नहीं आता तो उसका नाम कहाँ से नजर आएगा इतनी दूर से? लेकिन पूरन को तो उसने आउट नहीं किया, वो तो लीस्ट ने आउट किया उसको। लेकिन उस पर बातें बहुत सारी लिखी हुई हैं। हो सकता है कि वो जो मैंने कहा मुझे लगता है जो आप इंटरवल में कह रहे थे ना, वो फास्ट बॉलर जो ब्रायन लारा को क्या कहा था उसने, हो सकता है फाइनल टीम को गजनी आ गया। एक हमारे फास्ट बॉलर आया, विकी भी था उस मैच में, शारजा मैच था हमारा आई थिंक। तो मैंने उसे कहा यार वो नया था लड़का फास्ट बॉलर, आई टेल यू लेटर हु ही वाज, वी नॉट सेइंग इट ऑन। तो मैंने उसे कहा ब्रायन लारा है लेफ्टी के अंदर खब्बा मेरी तोर है। ओए कॉन्फिडेंस, आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। गल सुन ले यार, एक्चुअली आई फील्ड रखा है कहते नहीं बैंड खब्बा मेरी तोर है, तो 160 कर गया ब्रायन लारा। लेकिन इसने प्रूव कर दिया, इसने मेरे ख्याल में कहा था कि ये बैट्समैन तो मैं ले जाऊंगा, वो ले गया उसको। या ओह वेल, फैंटास्टिक स्टार्ट टू द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। कल के बीच जो मैचेस थे बड़े ज़बरदस्त थे और आज के भी मैचेस, नाउ वी हैव सीन clear cut, 2 upsets, 2 predictions that have gone completely wrong. Yesterday Sri Lanka getting defeated by Namibia, and today West Indies taken out by Scotland. It has just been fantastic. And then Zimbabwe taking on Ireland. और यूएई और जो मैच हुआ नेदरलैंड्स का वो भी बहुत ज़बरदस्त था. सो इट्स अ गुड प्रॉमिसिंग बिगिनिंग टू द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 एंड अ वेरी प्रॉमिसिंग बिगिनिंग फॉर द pavilion, especially now that Waqar Younis has finally decided to join us and has arrived. His boat is here. But we're going to talk more about the 2 other games that went down today. There were 2 warm-up matches. One was India versus Australia and the other was Pakistan against England. Very important teams, very important warm-up matches. Should we read a lot into them or should we just take them as warm-up matches? We'll discuss that with our panelists when we come back from this break. Keep watching The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app.
Welcome back from the break. मैं हूं फ़ख्र आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap app. ICC Men's T20 World Cup की कवरेज जारी. ग्रुप बी के 2 बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हमने देखे and well, West Indies there surprised by a great performance by Scotland and then Zimbabwe taking out Ireland. So this has been an exciting beginning to the ICC Men's T20 World Cup. With me in the studio, I've got the legends, the icons. I've got Shoaib Malik, Misbah-ul Haq, Waqar Younis and the great Wasim Akram. और दोस्तों अब बात करते हैं आज जो 2 वार्म अप मैचेस थे, 2 बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत ज़रूरी क्रिटिकल वार्म अप मैचेस थे. एक पहला मैच जो था वो था इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड. पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड का मैच जो था, क्योंकि ये वार्म अप मैच था तो ये हम ARY Zap की ऐप पर दिखा रहे थे. आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों ने उसको वहाँ पे देखा होगा. जस्ट इन केस अगेन जियो लॉक्ड है यहाँ पर मैचेस. ये मैच चूँकि हिस्सा नहीं है मेन आपके टूर्नामेंट का, तो यू कुड सी दैट ऑन दी ARY Zap. 2-3 ने ट्वीट की थी इसके बाद. जी आपने कहा था कि why is it trending ARY कि Zap? वो स्टार क्रिकेट दिखा रहा है तो हम क्यों नहीं दिखा रहे. उन्ना को 7 चैनल ने स्पोर्ट्स जी 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 7 वो दिखा सकते हैं. सोचे बगैर ना लिख दिया करो. सोचते नहीं है बस अहम ही बस अपना. Actually, उसमें I think वसीम जो उसमें इशू है वो ये कि a lot of people still don't understand कि territorial rights क्या होते हैं. पता है सारा कुछ और फिर limitations हमारी क्या हैं, किस तरह वो करके हैं. सबसे पहले ज़रा इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया इसकी ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पहला मैच था वार्म अप और इंडिया ने जो है वो 6 रन से डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया को, द डिफेंडिंग चैम्पियंस ऑस्ट्रेलिया. तो सबसे पहले मैच समरी पे नज़र डालते हैं. दिस इज़ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. इंडिया batting first, putting up a very healthy total of 186 for 7. Australia almost chasing it down, or 180 in response. Shami there, look at that bowling figure, just spectacular. Yeah, there were a lot of debate on Shami during Asia Cup as well. उसको वहाँ भी नहीं लेके गए वो, and यहाँ भी वो reserves में था. End में वो I think जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुआ है तो इसको लेके आए हैं जी. और शामी हैज़ बीन एक्सेप्शनल बॉलर फॉर इंडिया हर फॉर्मेट में. और ऑस्ट्रेलिया में उसकी क्यों वो यूज़फुल रहेगा, बिकॉज सीम मारता है, उसकी लगती सीम है हमेशा. जब सीम लगती है उसका मतलब है बॉल दोनों तरफ उसका सीम होता है और उसकी पेस भी ठीक ठाक है, 140 प्लस है जी. सो आई डोंट नो उनकी थिंकिंग क्या थी, बट आई थिंक उसने शो किया. आज उसने एक ही ओवर किया, आई थिंक 3 विकेटें भी ले गए. Talking about Shami and their fast bowling, Brett Lee had a very interesting comment about Umran, जो उनकी एक नई find है, बड़े ज़बरदस्त. But he is not there. He's not there, but that's what Brett Lee said. Brett Lee said it's like you have the best sports car in the world, yeah, and then you leave it in the garage. That's what I said as well other day. अभी मैं गया हुआ था during Asia Cup कि एक फास्ट बॉलर है आपके पास, जैसे हमारे पास नसीम आया या शाहीन तो हमारा मेन बॉलर है ही है, रेगुलर है. हारिस जैसे आया शुरू में, पेस थी ना, उनको रखा इन्होंने. उसके पास उमरान के पास पेस है. उसको अभी आई थिंक आयरलैंड में लास्ट समर उसको थोड़ी एक तो T20 में मार तो पड़ जाती है. उसके बाद उन्होंने उसको, अब वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है, बट अगर पेस है, वो लड़का आपके साथ रहेगा, स्क्वाड में रहेगा, तो वो जल्दी इंप्रूव होगा. बिकॉज वो टॉप के साथ खेलेगा, टॉप के साथ रहेगा, उसको पता है माइंडसेट पिक करेगा. बट आई सपोज इट्स देयर थिंक टैंक इज थिंक टोटली डिफरेंट. मेरे ख्याल में ये सही डिसीजन है कि उसको उन्होंने, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ है और रॉ को जब तक आप थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं तो दैट्स व्हाट वसीम इज सेइंग, टीम के साथ रखे ताकि उसको पॉलिश. लेकिन मैचेस खेल के आप ज्यादा रॉ ही आया था ना, हारिस राउत भी रॉ ही आया था ना, उस पर हमारी ज़रूरत थी. उनके पास ऑलरेडी वो लोग हैं जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जिन्होंने डिलीवर किया है. भुवनेश्वर कुमार bowled well, he's got 2 wickets for in his 3 overs 20 runs दिए उसने. उन्होंने कहा है कि भाई थोड़ी आप 4-डे क्रिकेट खेलें, आपको थोड़ी समझ आए कि सेट बैट्समैन के सामने कैसे बॉलिंग करनी है, नए के सामने कैसे बॉलिंग करनी है. So it's development, they're trying to develop his skill level in their first class structure. कई दफा डेवलप के चक्कर में ना बॉलर्स खत्म हो जाते हैं. रिमेंबर दैट. Yes, that also is possible. That is a possibility as well. हर जगह ही हो जाता है, बिकॉज एक चीज़, एक आपको प्रोडक्ट नजर आती है. आप जितने भी उठा के देखेंगे ना ग्रेट्स या बड़े नाम भी, वो बड़ी अर्ली एज में दे बीन थ्रोन इन द डीप एंड एंड दे हैव लर्न हाउ टू स्विम इन देयर. सो आई फील के आई एम हैप्पी दैट इज नॉट देयर, बिकॉज पाकिस्तान का मैच आने वाला है. इज अ रियल टैलेंट एंड वी स्पोक अबाउट इट इन द एशिया कप आल्सो अ लॉट, क्योंकि वहाँ पे स्टार वाले तो दे वर लाइक हर बंदा टीम बना रहा था, तो किसी की टीम में भी नहीं था ना. आई वाज रियली सरप्राइज कि ये इस तरह नहीं सोचते जिस तरह हम सोचते हैं. हम सोचते हैं कि यार पेस है ना तो ठीक हो जाएगा, और इवेंचुअली आपने देखा ये सारे जितने भी बच्चे आए थे ये बैक इन द मिसबा और मेरे टाइम पे आए थे, एंड दे जस्ट नाउ दे आर द बैकबोन ऑफ द बॉलिंग. सेम चीज होती
वसीम भाई और वकार भाई, आप उसको डालते, अगर ये वर्ल्ड T20 ना होता, कोई सीरीज़ होती, बायलैटरल सीरीज़ होती, फिर आप उसको खिलाते तो वो समझ में आता था। हाँ, वर्ल्ड कप तो नहीं, बट टॉकिंग अबाउट एशिया कप अभी हुआ है, उससे पहले जो उनकी उसको रख सकते थे। I mean, they were trying other bowlers. No, it's not as if they weren't trying any other new bowlers. But anyway, I think it's just a thing that people have made that comment. Misbah, let's come back to the Indian warm-up match and their batting lineup. I'm looking at their strike rates, and that strike rate is very alarming, and they're looking really, really good in Australia, because generally कहते हैं कि जी ये subcontinent की wickets पे खेल के आए हैं और इधर की विकेटों पे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो warm-up match में आप देखें, राइट ऑन टॉप KL राहुल 172 के स्ट्राइक रेट पे उन्होंने बैटिंग की है। रोहित शर्मा सरप्राइजिंगली वाज ओनली द वन विद 107 स्ट्राइक रेट, बट देन एवरीबॉडी एल्स 148, 151, 142, 300 ऑल द वे डाउन। अश्विन एक्चुअली बोल्ड, आई मीन ही बैटेड फॉर 2 balls, बट इंटरेस्टिंग। देखिए, ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद एक चीज़ डिसाइड कर ली। यानी पहले उनकी एक स्ट्रेटजी थी, जैसे पाकिस्तान अब नॉर्मली खेल रहा है पिछले 2 सालों से, वो इस तरीके से खेलते थे, बट उन्होंने चेंज किया है। उन्होंने अब इंग्लैंड वाली पॉलिसी लेके आए हैं वो, कि बस गो आफ्टर द बॉलिंग, पावर प्ले में मैक्सिमम रन्स आपने करने। उसके मुताबिक आप देखें, रोहित शर्मा ने अपने आप को चेंज किया है, कि KL राहुल है, इवन विराट कोहली को अगर आप देखें, पहले वो टाइम लेता था, अब वो भी आके अटैक करता है। और वो एक टीम स्ट्रेटजी आपको नज़र आ रही है कि बस ऐसे ही खेलना, हमने 200 प्लस करने जाना है। हमने नीचे जो उन्होंने टीम भी पिक की है, सूर्य कुमार यादव की वजह से मुझे लगता है कि बहुत एक उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ बढ़ी है, क्योंकि जितनी उसके पास जिस किस्म के उसकी रेंज है और जिस किस्म के वो शॉट्स खेल रहा है, इन एनी सिचुएशन, एनी टाइप ऑफ बॉलर, हर चीज़, हर किस्म की शॉट है उसके पास। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि उनके टॉप ऑर्डर ने भी फिर वो उनके भी रोल चेंज हो गए। एंड देन ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या, द वे ही इज परफॉर्मिंग, और उसकी जो परफॉर्मेंस विद द बैट है, दिनेश कार्तिक नीचे उनको वो एक आके फिनिशर, एज ए फिनिशर का जो पंट भी नहीं खेला ये मैच, पंट भी अभी तो उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा खिलाई है। दे माइट बी ट्राइंग कि ठीक है हम एक एक्स्ट्रा बॉलर देखें, क्योंकि बॉलिंग उनकी पीछे एक्सपोज हुई है, तो वो बॉलिंग को थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाएं, 6 बॉलर्स के साथ जाएं, तो क्या तो ये थोड़ा सा वो चीज़ें देख रहे हैं। और आई थिंक मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया, द काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप दे हैव, ऑब्वियसली स्टिल मैं कहूँगा कि बॉलिंग में अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं बैटिंग की निस्बत वीकर लिंक है उनका। सिर्फ बॉलिंग में कुछ एक जो एक है, they are trying to sort that out. Let's talk about Australia here, Waqar. Now today they tried 7 bowlers. 7 bowlers. What warm up match, maybe just trying out, everybody seeing, getting a feel of things. देखिए, वर्ल्ड कप में ऐसा होता है कि जब आप जाते हो वार्म अप मैचेस में, तो टीमें आपस में डिसाइड करती हैं कि इट्स नॉट 11 साइड, इट कुड बी 12 साइड, 13 साइड। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बैट्समैन जिन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग टोटली डिफरेंट बॉलर्स ने की हैं, और वो सारे ही बाहर थे टीम से। सो 13-14 लोग खेले हैं। सो इट्स मोर लाइक अ प्रैक्टिस देन द एक्चुअल विन और लूज गेम। सो बोथ टीम्स आर इन गुड फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया एट होम always a very dangerous side. Defending champions. They're defending champion. They know on their conditions में कैसे खेलना। और अब उनके पास जो और भी 1-2 नए प्लेयर आए हैं, जिसमें टिम डेविड आ गए हैं। he's a wonderful player. उसने PSL में भी लास्ट ईयर भी, ईयर बिफोर 2 साल उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। सो दे आर अ वेरी डेंजरस साइड। डोंट कंसिडर दिस एज अ कि ये कोई मैच ऑस्ट्रेलिया हारी है या इंडिया जीती है या तो आई फील के दे ऑल हैव सोर्सेज। उनके पास दोनों टीमें तगड़ी हैं, तो इनको हराने के लिए आपको बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। Yeah, you have to be on top of your game. Now, Wasim, how much of an impact would a warm-up game have on the psychological, collective psyche of the entire team? Because India, warm-up match against Australia, the defending champions, at their own home ground, home turf, and winning it. Does that give some kind of extra advantage to India? It gives you confidence, obviously, as a player. If you perform, as an individual, if you do well in these warm-up games, पता लग जाता है मैं कितनी निक में हूँ, मेरी फॉर्म कैसी है, वीक कहाँ पे हूँ. And if you win, and if you get wickets, and if you get runs, obviously before the big game, that confidence you carry into the games too, buddy. It does help. मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि जो स्पेशली 2 चीज़ें दोनों टीमें देखना चाह रही हैं. इंडिया का स्पेशली जो बॉलिंग अटैक अगर आप देखें, मुझे लगता है कि उनकी कंपोजिशन जो होगी वो 3
they will go with 3 main fast bowlers and Including Hardik Pandya. Pandya. No. Hardik Pandya will be the fourth. The 3+ इसीलिए उन्होंने 3 स्पिनर्स खिला के देखा कि हमने किसको खिलाना है इसके साथ। मुझे ये लगता है पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पेशली ये नॉर्मली उनकी जो फॉर्मेशन है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में आप 3 फास्ट बॉलर, आई थिंक यू बी अ बॉलर शॉर्ट। That's what I believe. I believe कि पाकिस्तान की भी अगर बात करेंगे तो आपको एक गैप ऐसा नजर आएगा कि पाकिस्तान ने कोई जेन्युइन पेसर हैं, ऑल वेरी गुड, ठीक है ना। आप वो 2 स्पिनर खिलाते हैं तो कई दफ़ा फिर आपको पावर प्ले में आपको स्पिनर लाना पड़ जाता है कि एक को मार पड़ गई या तो वो उसको to tackle that situation I feel हमारे पास नहीं है ना। फर्स्ट 6 में फिंगर स्पिनर्स उनका सक्सेस रेट काफ़ी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ जो है वो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि मोस्टली टीम्स जो हैं वो फिंगर spinners से जाएंगी in the first 6 overs. We'll talk about Pakistan when we come back from this break. आप देख रहे हैं The Pavilion and this is A Sports, also on 10 Sports and on the ARY Zap app. When we come back, we'll talk about the Pakistan warm-up game against England, which England won. But we'll talk about it in detail. Don't go away. Keep watching The Pavilion. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स 10 स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पे द पवेलियन। मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, आइकॉन्स, हीरोज शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, वकार यूनुस एंड वसीम अकरम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो वार्म अप मैचेस हैं उसके हवाले से। पहला मैच इंडिया बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया, जो इंडिया ने जीता है 6 रन से। रियली ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट देयर, वार्म अप मैच, बट इट डज हैव सम इम्पैक्ट एज वसीम सेड ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्लेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पाकिस्तान वार्म अप गेम। पाकिस्तान का मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ और मैच समरी आपकी स्क्रीन पे हम लेकर आ रहे हैं। मैच कुछ इस तरीके से था कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 160 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। शान मसूद 39 एट 177 स्ट्राइक रेट विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। मोहम्मद वसीम ने नीचे 26 रन बनाए 162 के स्ट्राइक रेट के साथ। एंड देन वी हैव द 116s एंड द 122s एंड द 100s, बट बेन स्टोक्स, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड, लिविंगस्टन, मोइन अली, आदिल रशीद एंड डेविड विली, everybody bowled, everybody had a go at it. Interestingly, here's the thing, by the way, gentlemen, आपने देखा अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, द टीम बैटिंग फर्स्ट हैज़ वन, इंडिया वन, उधर स्कॉटलैंड वन, उधर जिम्बाब्वे वन। The only team batting first, जी, इधर इंग्लैंड वन। That's what I'm saying. The only team that did not win batting first was Pakistan. Now, I don't know if we should be very concerned about this, or this is just a warm-up match. Wasim, how do you read this? It's a warm-up game. Your 2 main players, your captain is rested and rightly so. So did Rizwan, one of our main players. मगर उसके बावजूद जो वरी मुझे, अगर मैं होता थिंक टैंक में या कप्तान होता तो मैं सोचता, हैदर अली का सोचता। आज उसको पूरी बारी मिली है, उसने 16 गेंदों पे 18 रन किए हैं, 3 चौके मारे हैं। देन ही गॉट आउट ऑफ स्टॉक्स। शादाब बैटेड नंबर 3, ही इज गॉट ओनली रन अ बॉल 14। इफ्तिखार यूजुअल 22 of 18। खुशदिल शाह गॉन आउट विदाउट स्कोरिंग। सो वही जो पिछले महीने 1.5 से मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। टुडे वाज अ गुड डे टू प्रैक्टिस, गेट सम रन्स, गेट देयर कॉन्फिडेंस। इससे हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11 प्लेयर नहीं है, अब जिससे मर्जी बॉलिंग करा लो, जिससे मर्जी बैटिंग करा लो। इट्स नॉट अ सीरियस गेम, बट इंटेंट एंड व्हाट डू यू लुक ऑन द फील्ड, अगर हारते भी हो तो। आपने कहा कॉन्फिडेंस इससे गेन करो। अब मैं थोड़ा सा खुशदिल के लिए और फिक्रमंद हो गया हूँ क्योंकि ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ही इज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एंड येट अगेन ही इज़ गॉन आउट फॉर डक। या इट्स अ वरी। I mean, for him psychologically it must be very, playing 11 क्या होती है। I think it's very strange in terms of अगर आप स्ट्रेटजी देखें पाकिस्तान की, कि आपने जब लेग स्पिनर को बाहर किया और उसकी जगह आप फ़खर को लेके आए। फ़खर ने अभी मैचेस नहीं खेले, अगर वो आया है तो आज क्यों नहीं खेला? इसका मतलब वो अभी तक फिट नहीं है। अगर फिट, वो कब मैच प्रैक्टिस करेगा और कब वो खेलेगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। देन ऑब्वियसली खुशदिल शाह, आपने खुशदिल अगर बैट्समैन लाए थे तो खुशदिल को आप बाहर करते अगर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं था। अब आपने लेग स्पिनर को बाहर कर दिया। शादाब इज़ कैरिंग इंजरी जी, वो फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहा है, वो अपने हॉट स्पॉट पे फील्डिंग भी नहीं कर रहा। किसी मैच में अगर थोड़ा सा भी कहीं निगल हुई उसको
और आपको उसकी जगह लेग स्पिनर खिलाना पड़े तो वो तो आपके रिजर्व्स में, ट्रेवर रिजर्व्स में, यानी शादाब को आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते और उसमें आप दूसरा स्पिनर या मेन लेग स्पिनर भी आपके पास नहीं है। तो वो ये सारी चीज़ें, और फिर जो एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि शाहीन आया है 2 ओवर किया उसने, इट मीन्स कि ये भी एक थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो गया कि ही इज़ नॉट स्टिल रेडी, कि वो मैच में कर रहा है तो आज 4 ओवर भी अगर नहीं कर रहा तो 4-6 दिन में डिफरेंट होता है। मेन मैच वर्ल्ड इसमें भी वो सिर्फ 2 ओवर कर रहा है ना। फुल हाउस है, 100,000 पीपल आर वाचिंग, नोइंग 1.7 बिलियन पीपल पाकिस्तान इंडिया के मिला के 5 जो भी है वो देख रहे हैं। वो प्रेशर डिफरेंट होता है जब इंजरी से स्पेशली वापस आ रहे हैं, और स्पेशली कि अगर आप इसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि वो 4 ओवर कर सकता है, देन यू आर होपिंग कि just after 6 or 7 days he'll be able to just play that sort of a game जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी वो इंटेंसिटी कहाँ पे होगी। एंड वी आर बेसिकली एक्सपेक्टिंग कि हमने पीछे अच्छा नहीं किया इंग्लैंड और उसके खिलाफ, तो शाहीन ही आके वो हमें जो है ना एक एक्स फैक्टर देगा और वो पहले ओवर की 2 विकेटें या पहले 3 ओवर। शाहीन hasn't played cricket for 2 months, over 2 months, am I right? Almost. So विकी, जब जैसे शाहीन is 22 years old, जब 22 साल के इवन हम भी इंजर होते थे तो कम बैक में थोड़ा रिदम में टाइम तो लगता था, स्ट्रेट अवे रिदम नहीं थे ना आता, इवन इस एज में भी नहीं आता रिदम। और मैं तो इसमें था कि अगर तो उसको वर्ल्ड कप खिलाना है या वर्ल्ड कप पे लेके जाना है तो उसको न्यूजीलैंड जाना चाहिए था। उसको कम से कम 4-5 मैच उसकी कहते हैं ना अंडर द बेल्ट होने चाहिए थे ताकि उसको बॉलिंग फिट होना है। एक मैच खेलना और एक नेट में बॉलिंग करना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो आई फील के अंडर कुक तो डेफिनेटली होगा, ये हमें सबको पता है। लेट्स होप। और ये हमारा ये प्रॉब्लम हमेशा से वसीम भाई रहा है कि वी ऑलवेज होपिंग अगेंस्ट द होप कि यार हम उसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। फ़खर भी अगर नहीं है तो that means round the corner। I mean, आज नहीं खेला, there is 1 game left। वीजे इतने लोगों के लगे हुए थे। असल में क्या मतलब? विकी भाई is there, he's already there। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जो गेम है ना वो वीजे ये जो आज की प्लेइंग साइड है ये क्लियरली ये शो कर रही है कि वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शान इज गोइंग टू प्ले एट नंबर 3, हैदर अली विल बी योर 4 एंड ऑब्वियसली जो नेक्स्ट आपकी है वो इफ्तिखार, शादाब और नवाज जो खेल रहे हैं ये वही जो सेम टीम। फ़खर को बैकअप प्लान में रखा उन्होंने, मुझे यही लग रहा है जो देख के। अदरवाइज़ अगर वो फिट था तो वो ये मैच अगर नहीं खेला तो नेक्स्ट तो लाजमी उसको खेलना चाहिए, वो भी अगर वो नहीं खेलता। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है कि आप अब डिफरेंट कंडीशंस में जाके खेलने लगे हैं। सेम स्ट्रेटजी जो आपने एशिया कप में रखी या इंग्लैंड के अगेंस्ट या न्यूजीलैंड में था, सेम फॉर्मेशन के साथ आप नहीं वहाँ खेल सकते। और जैसे शाहीन की आपने बात की कि आज उसने 2 ओवर्स किए, शायद उन्होंने कहा होगा कि पहला मैच खेल रहा है तो इसको 2 ओवर्स ही करा, वो अगले में शायद हो सकता है वो 4 ओवर्स करे, तो वो पता चल जाएगा जो अगला प्रैक्टिस मैच है। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आप अपना क्यों नहीं डिसाइड कर रहे जो आपका 4 नंबर है और जो आपका 5 नंबर है। इस पे अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि शादाब जाएगा या नवाज जाएगा, दे आर केपेबल and we have seen they have been performing on those numbers। Right। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि उनकी बॉलिंग पे इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़। Okay। जब आप उनके दिमाग में ये डालेंगे कि आपको हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं आपसे, आप 4 पे या 5 पे जाके खेलें तो उनकी बॉलिंग अफेक्ट होगी। उसके लिए आपको 6 बॉलर्स के साथ वहाँ पे जाना पड़ेगा और आपको सीमर चाहिए, और छठा बॉलर है नहीं, there is no seamer, what can जो you साथ do? में बैटिंग कर सके। But there is no one। वो वसीम को वो कंसिडर करते हैं ऐसा, लेकिन but he is a number 8 number 9 वसीम को 9-10 पे आप खिलाते हो तो I will never consider him as के जी ऑलराउंडर एट द मोमेंट। ही इज गॉट पोटेंशियल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई वुडंट कंसीडर हिम एज एन ऑलराउंडर। लेट मी थ्रो सॉरी मैं वसीम आपसे पूछना चाह रहा था वसीम, ये अगर आप हमारी आज की बॉलिंग कार्ड को देखें और आप हमारी इकॉनमी को देखें हमारे बॉलर्स की, शाहीन शाह अफरीदी की 3.5 रन की इकॉनमी थी, वेरी गुड, बट उन्होंने सिर्फ 2 ओवर कराए। नसीम शाह एट 10 एन ओवर, मोहम्मद हसनैन एट 12 एन ओवर, मोहम्मद वसीम एट 6, शादाब एट 15 and over and Mohammad Nawaz at 18.5 and over।
Again, should we be worried about this, or it's just a warm-up game? ये आप ये इसकी बॉलिंग जी, इकोनॉमी की बात इकोनॉमी बता रहे हैं या मुल्क की इकोनॉमी बता रहे हैं? मुल्क की इकोनॉमी। उसमें देखें, नवाज आपका कभी भी एंड पे बॉलिंग नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए। जो आज उसने किया, ठीक है। मुझे लगता है कि वो स्टार्ट में करेगा, अगर शाहीन खेला तो वो उसके साथ वो करेगा अटैक, क्योंकि फिंगर स्पिनर जो हैं और वो कर भी रहा है और सक्सेस रेट भी काफ़ी है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में। तो आज तो खैर उसने नीचे बॉलिंग की है तो उसका वो बनता नहीं है उस पर। अगर हम ये बोलें, उसने 2 ओवर्स में 37 रन्स दिए हैं। हाँ, शादाब कॉन्फिडेंस आपका ज़रूर नीचे जाता है, थोड़ा सा जो है शेक होता है। अच्छी बॉलिंग नहीं करता हुआ आ रहा है अभी न्यूजीलैंड में। he went for lots of runs। और दूसरा he had a very good run with the bat, but bowling was poor। और फिर आप दोनों से सेम क्वेश्चन, आज कैचेस भी छोड़े हमने माशाल्लाह, और उसके बाद एज यूजुअल हमारे यंग लड़के ने 20 साल वाले ने गेंद इधर थे, आप इधर जा रहे हैं। अब तुझे पता है एज अ फील्डर कि मैं अगर स्वीप पे खड़ा हूँ या मैं बैकवर्ड पॉइंट खड़ा हूँ, बॉल ने टर्न होना है। अब ये चीज़ें कोच तो नहीं ना बताएगा, और मुझे लग रहा है कि मुझे इनकी फिटनेस जो है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अपीयरेंस वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एक होता है लीन, फुर्तीले, वो मुझे पिछले साल से कम नज़र आ रही है। अब जब ये इनको ऑलमोस्ट साल हो गया, साल से ज़्यादा हो गया इनको गए हुए, उस फिटनेस में और इस फिटनेस में आपको भी फ़र्क नज़र आता है? अब मुझे अच्छी चीज़ जो है ना पाकिस्तान टीम में वो ये नज़र आती है कि एक टीम बन के खेलते हैं, क्योंकि मोरलेस एज ग्रुप जो है सबके सेम है। और उसमें यह है कि वसीम भाई, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको ड्यूरिंग सीज़न क्या ट्रेनिंग करनी है और ऑफ सीज़न क्या करनी है। और दूसरा, ट्रेनिंग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का तब एडवांटेज होता है जब आप राइट खाना खाएं और आप अपनी बॉडी को राइट रेस्ट दें और राइट रिकवरी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं। फॉर एवरेज यंग बडिंग क्रिकेटर, व्हाट्स द राइट फूड? यू आर 40, यू लुक $1 million। देखिए, उसमें वसीम भाई, अगर तो आप ऑफ सीजन में तो आपको कार्ब्स से दूर रहना चाहिए। कार्ब्स में हेल्दी कार्ब्स जैसे हो गए मैश पोटैटो हो गए, स्वीट पोटैटो, वाइट राइस जिसको हम स्टीम राइस कहते हैं, ठीक है। और अगर आपको रोटी खानी है तो होल व्हीट की आप रोटी खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये ड्यूरिंग सीजन या ड्यूरिंग आप टूर्नामेंट ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी नीचे जानी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में हैं तो आपकी डाइट प्रोटीन होनी चाहिए। प्रोटीन में जैसे ये आ गया आपका चिकन आ गया, फिश आ गया, रेड मीट आ गया, इस तरह की चीज़ें आप खाएं। और दूसरी ना वसीम में, बहुत सारे हमारे लोग ना, मुझे भी इशू है आइस टब का, मैं भी नहीं जाता, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव है, वो ये है कि आप 1 मिनट ठंडे पानी के नीचे शावर करें, 1 मिनट गर्म, 3-4 दफ़ा आप उसको वो करें तो आपकी रिकवरी होती है। हम लोगों का ये इशू है वसीम भाई, जिस दिन हमारा अच्छा होता है तो हर चीज़ सही है, हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें हर चीज़ अच्छी लग रही होती है, हमें प्रेज मिल रहा होता है, हम उसमें ही जो है ना वो गुमसुम रह जाते हैं और अगला मैच भी आ जाता है। आई थिंक इसके व्हाटएवर मलिक इज सेइंग, आई थिंक इज 100%। आई थिंक इसके साथ साथ अगर आपकी बेगम भी स्पोर्ट्स पर्सन हो तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। That you can't just, no, that'll be a very difficult decision ये to जो do. शुरू में ये जो आज अर्लियर जो शुएब ने हिट मारी थी कि उसका रिटेलिएशन, पहले आप लोग ये डिसाइड कर लें कि एथलीट बेगम का एडवांटेज होता है या जो घबरा के रखवाए अपने हस्बैंड को उसका एडवांटेज होता है। तो मतलब अब सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है ये दोनों चीजें तो बता सकता दोनों का। लेकिन तुसी कारोबार ज़्यादा रहते हो। मलिक जो जनरली एक सवाल मतलब जो अभी नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, या जो हमने एशिया कप में देखा और जो हमने इंग्लैंड सीरीज़ में देखा, पाकिस्तान टीम की जो फील्डिंग है, हम स्लो नज़र आ रहे हैं, हम बॉल पे पहुंच नहीं रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्लियर कट फिटनेस इशू है, वो नज़र आ quickly ask you this, a direct question, what Wasim has already asked you. Is there a difference between when you guys left this team and the team that is here today in terms of their fitness? I see the difference. You see, but I want to hear it from them. They were there in the dressing room. वो चार दफ़ा इसीलिए गए हैं, और मैं भी इसीलिए गया हूँ क्योंकि जो भी पुश करता है ना पाकिस्तान में प्लेयर्स को आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन,
अब ऐसे प्लेयर जैसे मलिक है या यूनुस खान था या मैं था जो खुद रेडी थे कि फिटनेस को हम अपने आप को पुश करते थे लिमिट्स, बाकी जो विलिंग नहीं है उनको जब आप उनकी लिमिट्स से पुश करोगे तो वो अच्छा ट्रेनर नहीं है, वो अच्छा कोच नहीं है, एंड दैट्स वाई आप बैड कॉप बनते हैं। और यही सिचुएशन है जब आप पाकिस्तानी प्लेयर्स पे ये छोड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको नज़र आ रही हैं, आपको टमीज़ बाहर नज़र आ रही हैं, आपको हैवी उनके लोअर नज़र आ रहे हैं, आप मूव नहीं कर पाएंगे जब आप मेरी तरह के हो गए हैं तो सारे के सारे तो ये बात कर रहे और हैं इसकी एक वजह है कि पिछले 1 साल में जहाँ तक मुझे पता है देयर इज़ नो फिटनेस टेस्ट, कोई बेंचमार्क नहीं है पाकिस्तान टीम का, नॉट अ सिंगल फिटनेस टेस्ट। हो भी रही है जो ट्रेनिंग तो वो भी हम साथ तो नहीं है टीम के बट एक्सटर्नली, और जो डोमेस्टिक में है बात होती है प्लेयर्स के साथ, दैट बिकम्स अ जोक जो फिटनेस लेवल्स या फिटनेस टेस्ट है। और उस टाइम पे हमारी इसी वजह से आर्गूमेंट भी होता था कि हम ये कहते थे कि जो पाकिस्तान टीम का एक स्टैंडर्ड आपने रखा हुआ है नीचे भी वही स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। बट जो डोमेस्टिक के हमारे लोग थे, मैं क्लियरली ये कह रहा हूँ, दे ऑलवेज अपोज्ड अस ऑन दैट ओपिनियन। नहीं ठीक है जी, कोई नहीं, स्किल की बात होती है, स्किल की बात होती है। तो ये चीज़ें सॉरी मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे, मैं अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा हूँ, लेकिन वो एक लॉजिक मुझे नहीं समझ आई, या उसमें कम्युनिकेशन गैप था या कोई चीज़ थी। आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स, दे सेड कि यार जिस दिन हम लोगों ने 20 ओवर किए हुए हैं हमें बोला है 100 शटलिंग करो, अगले दिन आके फिर बॉलिंग करनी है। एक बंदे ने 100 किया हुआ है पहले दिन पे, उससे भी बोला गया है कि यार 110 शटल्स लगाओ। दैट्स द प्लेयर्स बेसिकली वर्जन। यही पाकिस्तान टीम में होता है। कोई भी प्रोफेशनल इतना बेवकूफ़ नहीं है ट्रेनर कि वो आपको ऐसे करे। आपको पता है कि एक आपका चार्ट होता है, आपको पता होता है यार ये आप 50 रन करके आए, इसकी कार्डियो हो गई है, इसको सिर्फ रिकवरी सेशन चाहिए। ये हमें भी पता है, ट्रेनर्स को कैसे नहीं पता होगा यार, वो क्वालिफाइड है। ये तो सिर्फ इससे एडवांटेज हो सकता है कि अगर आपका लेट्स सपोज आपकी 6 टीमें हैं डोमेस्टिक की, और जब आप प्लेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो तब आप एक बेंचमार्क ऐसा रखें कि यार ये फिटनेस लेवल होगा रिगार्डलेस वो बाबर आजम है या कोई फर्स्ट क्लास का मैच खेल रहा है, अगर वो उसको पार करेगा तो ही एलिजिबल होगा सिलेक्शन के लिए। एग्जैक्टली ये इसी चीज़ पे मेरी डिबेट होती थी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी कोशिश यही थी, नहीं हुआ वो पूरी तरीके से, वो इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया लोगों ने। कोशिश हमारी यही थी, यकीन करें। हाँ, विद इन डोमेस्टिक आप वो प्लेयर्स को लीवरेज देते हैं अच्छा बनने के लिए। बुरा वो होता है जो उनकी भले के लिए, उनके फ्यूचर के लिए उनको गाइड करता है। एंड वन मोर थिंग वकार भाई, जो हमारा सेटअप था उसमें वी ऑलवेज यूज टू हैव लॉग, वो जो डोमेस्टिक में भी प्लेयर्स हमारे खेल रहे होते थे उनका डाटा भी हमारे पास आता था रोज़ कि इसने इतने ओवर्स किए हैं, इसकी कार्डियो, इसका ये सेशन है वीकली, वो हमारे पास रिकॉर्ड होता था। आई डोंट थिंक सो दैट्स हैपनिंग। देखिए वो जो मिसबा ने बात की है ना कि आप जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे यू विल नेवर बी सक्सेसफुल, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो ये है कि यू नो मेरी समझ से बाहर है कि इतने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हमारे पास बैठे हुए हैं और वो then don't want to reach at the top. The only way you can reach at the top is by putting yourself in an uncomfortable situation. आप नहीं करोगे, you will struggle. It's very simple. Very good point. डाइट के ऊपर भी बात आ गई। बड़े पाई हो गए ने, शिकायत लाने ने, शिकायतें लाने ने कि जी वो ट्रेनिंग ज़्यादा करा रहे हैं, मैं कीता है। और पीसीबी ने रिलीज़ की थी लास्ट फ्राइडे क्विक वन कि उन्होंने कहा था फ़खर विल अराइव इन ब्रिस्बेन फ्रॉम लंदन विद शाहीन शाह अफरीदी, और सैटरडे की सिलेक्शन के लिए 2 वार्म मैचेस के लिए अवेलेबल होगा 17th और 19th, एंड ही डिडंट प्ले। Well, that is how it has been. इस पे ज़्यादा बात करनी इस पे करेंगे, कल हम करेंगे क्योंकि आज वक्त खत्म हो गया, एक ब्रेक भी लेनी है, फिर कल के मैचेस के बारे में भी बात करनी है। आपका पॉइंट भी आ गया, कार्ब्स के ऊपर कंट्रोल ऑफ सीजन में और प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो जोर डाला जाए। बिरयानी इज इंक्लूडेड, उसमें प्रोटीन भी होती है और अच्छे वाले कार्ब्स भी होते हैं। हाँ, तली हुई ना हो तो मुझे कोई बिरयानी बता रहे हैं। देखिए ये जरूरी नहीं कि मैं बात ना करी मिसबा, हमने आपको गोश्त खाते हुए देखा हुआ है, हम सारों ने आपको गोश्त खाते हुए देखा। मुझे इन हिज डिफेंस कार्ब्स नहीं खाए, मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने पूरे दिन इनको खाया। नहीं भाई, 1.5 टन गोश्त खाते हैं अभी आप रुके हैं, अभी तो आपने ज्वाइन किया ना, गोश्त निकालता भी तो है ना। मोरक्को में ही इज रियली सॉलिड विद दिस। मोरक्को में हम खाना खाने चले गए, पानी पिछो कुक नस गया अंदरों, पूछो क्यों।
सालन दो इस दिन ते 35 ना आना इस दिन अल्लाह वो कहना मैंने बंदा दिखाओ कौन है थे यार With that, we are going to take a break. There's too much fun happening here in the pavilion. डाइट के ऊपर बात आ गई है, बिरयानी और नान तक कहानी पहुंच चुकी है, लेकिन वार्म अप मैच का मामला भी अपनी जगह मौजूद है. लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद. Stay tuned, keep watching the pavilion. Welcome back from the break. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports, 10 Sports and the ARY Zap ऐप डाउनलोड कीजिए और हमें आप देख सकते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिरयानी और नान तक कहानी जो थी वो पहुंच चुकी थी. इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे. और आपको पता है कि पिछले साल पेविलियन में हमें बहुत सारे लोगों ने खाना खिलाया. खाने हमारे लिए बन के आ रहे थे स्टूडियो में. तो ये सिलसिला इस साल भी शुरू होना चाहिए. हम वेट कर रहे हैं कि आप में से कौन है जो हमें खिलाएगा. आज पराठों का कुछ जिक्र, हम पूरे कौम को लेक्चर दे रहे हैं, काट खाओ तो तू खाना था ऑर्डर करी जा रहे हैं. भाई मैं तो उनकी खेड़ी नहीं. अब मैं कई दफ़ा खाना मैंने पिछले दिनों मैंने अपना ब्रेकफास्ट ग्रिल्ड वेजिटेबल्स और समथिंग लगाई और आधे से मैसेज आता पान तुसी लाहौरी और निहारी नहीं खानी. मैंने उनकी फिर मुंह देखे जाके उस पे उनके एक दो जो थे वो आप करते हो ना कि शक्ल कैसे एडे मुंह एडे मैं कहा तुसी खा लो निहारी और टीवी पुट्स ऑन 10 पाउंड जैसे होंदे थे एडे मुंह होना चाहिए. आई एम ऑल फॉर देसी खाना. आई लाइक मैं निहारी वंस इन अ वाइल. थोड़ी आधा नान खा लिया, एक दो बाइटें ले ली. मजा नहीं है बॉस, हमें ज्यादा चाहिए. वी नीड मोर. विद दैट वी कमिंग टू द एंड टुडे. आज द पेविलियन के आपके सवाल लेने थे, बदकिस्मती से हम नहीं ले सके क्योंकि वक्त खत्म हो गया. गुफ्तगू बड़ी जबरदस्त थी. कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी राइट हियर ऑन द पेविलियन. रिमेंबर कल दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. ये आइडेंट्स आपके सामने आ रहे हैं. पहला मैच जो है वो नामीबिया बामुकाबला नीदरलैंड्स है. नामीबिया ऑन अ हाई डिफीटिंग श्रीलंका कमिंग इन. नीदरलैंड्स इज गोइंग टू पुट अप अ गुड फाइट. दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मैच. एंड उसके बाद दूसरा मैच जो है वो है ए वरिड श्रीलंका टेकिंग ऑन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. नाउ द यूएई almost held back Netherlands in that 112 run low target. Lekin Sri Lanka, of course, they want to get their act together. They are the Asian champs. We wish them all the best. We will be back here tomorrow morning with our pre-match. So stay tuned, keep watching. YouTube पे भी आप हमें देख सकते हैं. And all of you sending us your comments and your great wishes and love and respect and criticism. Thank you very much. Truly appreciate it. मैं हूं फखर आलम. ये है Pavilion. I will see you tomorrow morning. Don't forget to tune in. Till then, take care of yourselves. Good night.